evening, sir. Good evening, ma'am. So, hopefully, you are able to see the slide. Yes, sir. ठीक, चलिए. So, a very good evening to everyone. Welcome to CA class. Today, we'll be discussing about writing a review paper. So, we'll see the basics of writing a review paper, and also we'll see a sample review paper, and we will analyze that particular paper also. So, a review article is a critical constructive analysis. Critical constructive means that it should be in depth. It should be able to um open the hidden folds that are there in the literature, and constructive analysis. So it should be constructive for a positive reason. We should critically analyze that particular literature. So it is a critical and constructive analysis of the literature in a specific field through summary, classification, analysis, and comparison. So when we view a particular literature, we should critically analyze it. क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब होगा कि उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को हम जो है एनालाइज करें, और कंस्ट्रक्टिव वे में उसको सोचें कि उस पे से क्या हम ऑनेस्ट रिव्यूज निकाल सकते हैं. उसके बारे में हमको उसके एनालिसिस करना है थ्रू समरी बना के. आप एक पेपर का समरी बनाएं. जो भी आप एक सिंगल पेपर को आप जैसे रीड करें प्रॉपरली, देन यू क्रिएट द समरी आउट ऑफ इट. That is how what did you learn from that particular paper. In a form of summary, you have to write some, say, 1 page का summary आपने बनाया. उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन है. क्लासिफिकेशन इन द सेंस दैट if similar kind of work is already done, तो उसके ऊपर क्लासिफाई करना कि किसने किसने कैसे कैसे उसमें वर्क किया था. और एनालिसिस करना, एनालाइज करना, उसको देख के उस कंटेंट को देख के एनालिसिस कर लेना कि जो है उसका क्या मीनिंग निकल रहा है. एंड कंपैरिजन ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ वर्क विच इज ऑलरेडी बीइंग डन. तो ये सभी चीज़ें जो है ये रिव्यू आर्टिकल में आप डाल सकते हैं, या सभी चीज़ों को आप इंक्लूड करके एक रिव्यू आर्टिकल बना सकते हैं. A scientific text relying on previously published literature or data. So we are actually reviewing or performing a review of an already existing published literature. New data from the author's experiments are not presented. So when we are analyzing some others review, we cannot present our own experiments based on that particular review. वो एक अलग पेपर बन जाएगा. दैट विल बी एन एक्सपेरिमेंटल पेपर. एक प्रैक्टिकल पेपर अलग टाइप का बनेगा, आपका टेक्निकल पेपर बनेगा. बट रिव्यू आर्टिकल इज नॉट टू प्रेजेंट सम न्यू डेटा और न्यू एक्सपेरिमेंट्स. इट इज एनालिसिस ऑफ ओल्ड, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, ऑलरेडी पब्लिश्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड लिटरेचर. सो ये स्टैंड अलोन पब्लिकेशन है. एक जो है लिटरेचर रिव्यू करके आप उसको लिख सकते हैं, या एक क्रिटिकल रिव्यू ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक ऐसे लिख सकते हैं टाइटल उसका, या लिटरेचर सर्वे ऑन अ पर्टिकुलर टाइटल और पर्टिकुलर सब्जेक्ट. और यू कैन टाइटल इट एज रिव्यू से सर्वे ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक ऐसे करके भी लिख सकते हैं. तो सर्वे लिखिए, लिटरेचर रिव्यू लिखिए. टाइटल में हम लोग जनरली ये सब वर्ड्स को यूज करते हैं to create a title of a review paper. So purpose of a review article is to organize the literature. So already जो existing literature है, से generally हम जब analysis करने बैठते हैं, so we have to have more than say 15-20 papers. हम minimum to minimum 15 to 20 papers हम लेते हैं of a based on a particular topic. उसी के ऊपर जो है हम जो है analysis करते हैं. तो we organize the literature, we evaluate the literature, we do an in-depth analysis of the entire literature, all the contents of the literature, different kinds of literature and sources, to identify patterns and trends in the literature. So if there
if we are analyzing a particular topic, we will observe that there must be some pattern which is being followed by the authors, because that kind of a pattern is very obvious uh, to solve a particular type of problem. So जिस particular type पे, किस topic पे हम जो है एनालिसिस कर रहे हैं, उस पे देखिएगा कि जो ऑथर्स हैं उनका जो अप्रोच होता है सिमिलर अप्रोच हो सकता है, तो वो दैट इज द पैटर्न एंड ट्रेंड इन द लिटरेचर। टू सिंथेसाइज द लिटरेचर, जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको लेके कुछ नया हाइपोथेसिस क्रिएट करना, या कुछ उसको उसको यूज करके जो है कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम पे जो है उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करना, एक डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा पे पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिएट करना, या डिफरेंट काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसी लिटरेचर को यूज करना, उसका आइडिया देना कि ऐसा सॉल्व हो सकता है, हमने जो अभी पढ़ा है ये 15-20 पेपर में से, उससे हम लोग को जो आइडिया मिला है इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है इस तरीके से। तो ये सिंथेसाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस आप अगर करेंगे तो आप उसमें से यू कैन सिंथेसाइज द लिटरेचर। वी कैन आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप्स। ये बहुत ही टफ, मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टफ नहीं है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है that we have to do because we have to write a research thesis. So हमको we have to find the research gaps. So we have to identify the research gaps and recommend new research areas that we will be following in our thesis. We will be solving in our thesis. So yeah, हमको जो है gives a very good pathway uh, to follow a particular kind of a activity over the to complete a research. So ये रिव्यू आर्टिकल, किसी भी सेट ऑफ पेपर्स का रिव्यू करना एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है और एक बहुत बढ़िया तरीका है जिससे कि हम नए रिसर्च को क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिसर्च। सो हु इज द ऑडियंस ऑफ द रिव्यू आर्टिकल्स? experts in the specific research areas. So you will be presenting your review article to the team of experts who will be critically analyzing your review. So if your review is very good, then they will appreciate it. And if the review is not up to the mark, then they will suggest the changes or the way in which you should perform the review. So students or novice researchers, they get the idea from your review. So if you are presenting your review in a conference, then the students or novice researchers who are new to the particular field will get new ideas of doing the research from your existing ideas that you have proposed. Decision makers who are there to give you marks, generally decision makers जो हैं वो हम उनको बोलेंगे, जो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपके सामने बैठेंगे, जो आपको क्रिटिकली एनालाइज करके आपको मार्किंग करेंगे, आपका मार्क्स वगैरह प्रोवाइड देंगे, आप अवार्ड करेंगे। सो ये सभी के लिए हम जो है रिव्यू आर्टिकल्स बनाते हैं, और ज़रूरी भी है कि करना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़रूरी एक्टिविटी है। विच टाइप्स ऑफ रिव्यू आर्टिकल्स एग्जिस्ट? अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पहला है टाइप है नैरेटिव रिव्यू। नैरेटिव रिव्यू जो है होता है कि सिलेक्टेड स्टडीज आर कंपेयर्ड एंड समराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑथर्स एक्सपीरियंस। सो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स पढ़ चुके हैं, अगर जैसे आपने से 50-100 पेपर पढ़ चुके हैं उसी टॉपिक पे, तो देन यू कैन जो है यू कैन क्रिएट अ कंपैरिजन, you can create a comparison using which the people can get an idea कि जो है you are able to summarize the your experience, existing theories and models. Results are based on a qualitative rather than quantitative level. So ये in-depth analysis जब हम करेंगे, जो हमारा experience होने लगेगा while reading the review papers, already existing review papers, तो हमको एक एक्सपीरियंस हो जाता है, और हमारे इंटेलिजेंस से हम जो है वी कंपेयर एंड समराइज द थिंग्स दैट वी हैव लर्न। तो वो हो गया नैरेटिव रिव्यू हो गया। नेक्स्ट है होता है बेस्ट एविडेंस रिव्यू। सो इट विल बी अ फोकस ऑन सिलेक्टेड स्टडीज विच इज कंबाइंड विद सिस्टमैटिक मेथड्स ऑफ स्टडी सिलेक्शन एंड रिजल्ट एक्सप्लोरेशन। तो इसमें जो है बहुत ही लिमिटेड पेपर्स हम पढ़ते हैं एग्जैक्ट जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमको फाइंड करना है उससे रिलेटेड, और एक सिस्टमैटिक मेथड यूज करके उनमें से हम जो है जो रिजल्ट्स आए हैं उसके उनको एक्सप्लोर करते हैं।
तो हर एक पेपर में एक रिजल्ट जरूर रहता है, उस पेपर के रिजल्ट को समझ के फिर जो है उसका एक एनालिसिस करके बताना। तो वो हो गया आपका बेस्ट एविडेंस रिव्यू। देन कम्स द सिस्टमैटिक रिव्यू। Systematic review findings from various individual studies are analyzed statistically by strict procedures. So, systematic review uses more empirical methods, statistical methods to analyze the results which were displayed, or the data that was used to display the results in the articles that we have studied for the purpose of review. Meta-analysis are also used to pool the results of individual studies. So, meta-analysis मतलब एनालिसिस का एनालिसिस, जो जितना एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका है आपके पेपर्स में, आपने जो स्टडी किया है, उन एनालिसिस का एक और एनालिसिस अगर करें, एक ओवरव्यू उसका क्रिएट करें, तो दैट इज नोन एज द मेटा एनालिसिस। सो दैट गिव्स, वो भी आप जो है थ्रू एक्सपीरियंस आप उसको जो है बना सकते हैं। देन स्टेटस क्यूओ रिव्यू। स्टेटस क्यूओ रिव्यू जो है प्रेजेंटेशन ऑफ मोस्ट करंट रिसर्च फॉर ए गिवन टॉपिक और फील्ड ऑफ रिसर्च। सो वी जस्ट give a tabulated, in a tabulated form, we just give an idea of whatever is the latest going on in a particular field of study, field of research. So that is status quo. We only present it, we don't analyze it too much. We just present the current scenario which is going on, the latest research which is going on. ये भी important होता है। उसके बाद हिस्ट्री रिव्यू, डेवलपमेंट ऑफ ए फील्ड ऑफ रिसर्च ओवर टाइम। सो हम एक पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक को पकड़ के उसी से रिलेटेड पेपर्स को जब हम निकालते हैं विच ए डेवलपमेंटल आइडिया कि 2011 में उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, फिर 2012 में क्या हुआ, 13 में क्या हुआ, 14 में क्या हुआ, 15 में क्या हुआ, एंड सो ऑन एंड टिल डेट क्या उसमें डेवलपमेंट हुआ है। तो उससे जो है लोगों को जो है एक आइडिया लग जाता है कि आगे क्या कर सकते हैं। देन इज इश्यू रिव्यू, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन इश्यू, एक पर्टिकुलर पॉइंट लेके उस पे एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट क्रिएट करके उसमें स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके इन्वेस्टिगेशन करना। जैसे एक पर्टिकुलर डेटा पे ही रिसर्च कर लेना, मतलब जो जो डेटा दिया गया है उसी पे सिर्फ जाके उसको एनालिसिस करना, अलग अलग डेटा पे उसको एनालिसिस ना करना। सिर्फ एक पर्टिकुलर, जैसे आप जो है रेनफॉल फोरकास्टिंग कर रहे हैं, रेनफॉल फोरकास्टिंग का ही डेटा को लेके पूरा इन्वेस्टिगेट करना, उसके ऊपर रिव्यू क्रिएट करना। तो दैट इज known as issue review. Then theory or model review, introduction of a new theory or model in a specific field of research. So वो हम रीड करते हैं अपने रिसर्च पेपर्स को, फिर फाइंड आउट करते हैं कि अभी नया जो लेटेस्ट क्या उसमें मॉडल जो है प्रपोज किया गया है। सो ओल्ड मॉडल्स को भी दिखाते हैं, साथ में एक न्यू मॉडल जो प्रपोज हो रहा है उसके बारे में भी बताते हैं, या इवॉल्व जो हो रहा है। अब उसमें जो है हम उसमें अपना व्यूज डाल सकते हैं कि इसका इवोल्यूशन ऐसे हो सकता है, एक नया मॉडल बन सकता है, एक नया थ्योरी जो है बन सकता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट जो हमको दिख रहा है। तो हम एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिस्टमैटिक वे में समझते हैं कि अभी तक अगर ये डेवलपमेंट हुआ है तो आगे क्या डेवलपमेंट हो सकता है एक पर्टिकुलर मॉडल या थ्योरी को लेके। सो दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ रिव्यूज दैट यू कैन क्रिएट। तो नैरेटिव रिव्यू, बेस्ट एविडेंस रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू, स्टेटस क्यो रिव्यू, हिस्ट्री रिव्यू, इश्यू रिव्यू, theory or model review. So these are the types of review papers that can be created. How long can a review article be? So कितना जो है उसका length होना चाहिए? So review article vary considerably in the length. So because it is an extensive study, so it can be quite long. से 3-4 पेज का हो सकता है अगर जर्नल के लिए आप रिव्यू पेपर बना रहे हैं। तो नेरेटिव रिव्यूज, जैसे अभी आपने देखा होगा जो थीसिस में बनता है रिव्यू, जो रिव्यू वाला लिटरेचर रिव्यू वाला सेक्शन होता है, वो करीबन जो है 20 पेज का भी बन सकता है। सो लेकिन ध्यान ये रखना है कि CSV2 में जो है थोड़ा सा लोग अवॉइड करने बोलते हैं, ज़्यादा पेपर्स जो है ज़्यादा पेजेस नहीं होने चाहिए आपके थीसिस में। सो थीसिस में जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूरा थीसिस A to Z 200 पेज के अंदर होना चाहिए। तो 200 पेजेस के अंदर में अगर लिटरेचर रिव्यू वाला सेक्शन अगर आप सोचें तो मैक्सिमम 10 या 15 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो हो गया अगर थीसिस में लिख रहे हैं, लेकिन अगर हम रिव्यू पेपर बना रहे हैं तो 3 या 4 पेज से ज़्यादा बड़ा उसको बनाना नहीं है। सो नैरेटिव रिव्यूज में रेंज बिटवीन 8,000 to 40,000 वर्ड्स, रेफरेंसेज एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड। ठीक, सिस्टमैटिक रिव्यूज आर यूजुअली शॉर्टर विथ लेस देन 10,000 वर्ड्स, बट इट इज़ नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल. It can be varying, but
depends upon which kind the material that we are collecting and the amount of research that we are doing on that particular topic. So next comes the elements of a review article. So अभी जब आप review article बनाएं तो ये 8 elements जो है वो आप minimum to minimum कोशिश करें include करने का. So that helps. वैसे ये जो 8 जो पॉइंट्स बताए गए हैं, इट इज़ नॉट लिमिटेड. इससे ज़्यादा भी पॉइंट्स हो सकते हैं, इससे कम भी पॉइंट्स हो सकते हैं. दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वे इन विच यू आर परफॉर्मिंग द रिव्यू, द टाइप ऑफ रिव्यू लिटरेचर यू आर क्रिएटिंग. सो एक मिनट. चलिए. सो टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, बॉडी, मटेरियल एंड मेथड्स. बॉडी में जो है पार्ट ऑफ मेन पार्ट ऑफ द रिव्यू आर्टिकल, देन कंक्लूजन्स, एक्नॉलेजमेंट्स एंड रेफरेंसेस. ये जो है मेन 8 पॉइंट्स में आप अपने रिव्यू आर्टिकल को डिवाइड कर सकते हैं. करना चाहिए, अच्छा रहता है. आप साथ में जो है लास्ट में जो है मतलब स्टार्ट इंट्रोडक्शन से करके एंड कंक्लूजन में भी कर सकते हैं, वैसे भी किया जा सकता है. लेकिन टाइटल एब्स्ट्रैक्ट तो देना ही पड़ेगा, बिकॉज वेन वर वी आर ट्राइंग टू पब्लिश अवर आर्टिकल, उसका आर्टिकल का एक टाइटल जरूरी है, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट जरूरी होता है, कीवर्ड्स जरूरी होते हैं, फिर इंट्रोडक्शन पार्ट आता है, फिर मटेरियल्स एंड मेथड्स, मेन पार्ट ऑफ द रिव्यू आर्टिकल, ये तो जरूरी है. उसके बाद कंक्लूजन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वॉट एवर वी हैव अंडरस्टूड, वी हैव एनालाइज्ड, वी नीड टू कंक्लूड देम. देन एक्नॉलेजमेंट्स जो है वो डिपेंड्स कि आपको हेल्प कहाँ से मिला था, उसके हिसाब से आप एक्नॉलेजमेंट्स देते हैं और रेफरेंसेस देते हैं. रेफरेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो टाइटल का क्या फंक्शन है? टाइटल इज हेल्प्स द रीडर टू डिसाइड वेदर दे शुड रीड द टेक्स्ट और नॉट. सो टाइटल से ही पता लग जाता है कौन से फील्ड का रिसर्च है, तो जो जो इंटरेस्टेड होंगे सिर्फ वही उसको रीड करेंगे. तो टाइटल मस्ट बी इंफॉर्मेटिव. द टाइटल हैज टू इंक्लूड इंपॉर्टेंट टर्म्स. जो मेन टर्म्स जो आप अपने रिसर्च में, अपने रिव्यू लिटरेचर पे यूज कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप रिव्यू कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके टाइटल में रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए. इट हैज टू इंडिकेट दैट द टेक्स्ट इज ए रिव्यू आर्टिकल. सो अ लिटरेचर रिव्यू ऑन ऐसे करके लिखने हैं, या अ क्रिटिकल रिव्यू ऑन ऐसे करके लिखते हैं, या फिर अ सर्वे ऑन ऐसे करके लिखते हैं. सो दीज आर द वर्ड्स दैट वी यूज. इट मे इंक्लूड द मैसेज ऑफ द आर्टिकल, नॉट जस्ट इट्स कवरेज. सो एक बेसिक जो है आइडिया पूरे आर्टिकल के बारे में आपके आपके टाइटल से ही समझ में आना चाहिए. तो टाइटल मस्ट बी शॉर्ट. सो इंफॉर्मेटिव भी होना चाहिए और शॉर्ट भी होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए. ज़्यादा लॉन्ग टाइटल्स जो हैं वो इट इज़ नॉट गुड, वो ठीक भी नहीं होता. शुड बी शॉर्ट एंड इंफॉर्मेटिव. तो टेंस क्या फॉलो करना है? इन ए टाइटल विद द रिजल्ट्स इंडिकेटेड, द प्रेजेंट टेंस stresses the general validity of the results and illustrates that what the author is trying to achieve with the article. The past tense indicates that results are not established knowledge yet. So अगर आप प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं, मतलब आपने कुछ उसमें से अचीव कर लिया है, सम रिजल्ट्स यू हैव अचीव्ड फ्रॉम द रिव्यू. अगर पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं तो अभी भी जो है रिजल्ट जो है वो कंफर्म नहीं है. तो टेंस भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो सेंटेंस बना रहे हैं टाइटल का, तो उसमें अगर प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे कि पास्ट टेंस यूज करेंगे, उसको भी ध्यान में रखें. साइटेशन तो देना ही नहीं है, क्योंकि टाइटल है, उसमें कोई साइटेशन नहीं आता है. एक जनरल जो है वो 12 वर्ड्स से मैक्सिमम 8 to 12 वर्ड्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सो द टाइटल शुड ओनली बी अ क्वेश्चन इफ दिस क्वेश्चन रिमेन्स अनआंसर्ड एट द टाइम ऑफ राइटिंग. सो इज इट, ऐसे क्या कर शुरू कर सकते हैं, वॉज इट, या ऐसे शुरू कर सकते हैं. तो क्वेश्चन मार्क अगर लगा रहे हैं, आपके टाइटल में क्वेश्चन मार्क लगने वाला है अगर एंड में, तो वो थोड़ा ध्यान से आप बनाएं, जिसमें कि ये इंश्योर करें कि जिस पॉइंट पे रिव्यू लिखा जा रहा है उस पॉइंट पे कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके रिव्यू में हैं, जो आपने प्रेजेंट किए हैं. तो वो तब आप टाइटल को ऐसे क्वेश्चन आप लिख सकते हैं. देन कम्स द एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन. एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन जो होगा, इट इन्फॉर्म्स अबाउट द मेन ऑब्जेक्टिव एंड द रिजल्ट ऑफ द रिव्यू आर्टिकल. तो ये एक तरीके का बोलना चाहिए कि समरी से पहले का समरी है, एक ओवरऑल समरी जैसे बन जाता है, लेकिन इट इज़ नॉट द समरी.
इट इज सम इंफॉर्मेशन विच गिव्स ए कंप्लीट इंसाइट अबाउट द एंटायर पेपर। पूरा जो है पेपर के बारे में बता देगा उसी एब्स्ट्रैक्ट में। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 200 to 250 वर्ड्स मैक्सिमम होना चाहिए। सो इट इन्फॉर्म्स अबाउट द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड द रिजल्ट्स ऑफ द रिव्यू आर्टिकल। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। और इट शुड इंडिकेट द टेक्स्ट स्ट्रक्चर, या डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। जनरली हम लोग इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट ही लिखते हैं। वो भी 200 to 250 वर्ड्स के रेंज के अंदर होना चाहिए, बड़ा बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्टिव अगर एब्स्ट्रैक्ट है फॉर नैरेटिव रिव्यूज, तो हम यूज करेंगे डिस्क्रिप्टिव रहेगा वो। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट कवर्ड विदाउट स्पेसिफिक डिटेल्स। डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट इज लाइक ए टेबल ऑफ कंटेंट्स इन पैराग्राफ फॉर्म। ठीक। सो डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट्स को जनरली हम लोग नहीं बनाते, हम लोग जो है इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट ही लिखते हैं। तो इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट में जो है इट शुड बी इन प्रेजेंट टेंस। इसको ध्यान में रखना है, द एब्स्ट्रैक्ट शुड बी इन प्रेजेंट टेंस। एंड उसमें जो सेंटेंस मेकिंग करेंगे वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट में जो है इट इज सिस्टमैटिक एंड बेस्ट एविडेंस रिव्यू का के कैटेगरी में आता है। ठीक है, सो सिस्टमैटिक एंड बेस्ट एविडेंस रिव्यू के कैटेगरी में आएगा। 1 or 2 sentences describe the context and the intention of the review। उसमें हम ऑब्जेक्टिव्स बता देते हैं, मटेरियल्स एंड मेथड्स दैट आर यूज्ड उसके बारे में हम पूरा चीज बताते हैं। फ्यू सेंटेंसेस दैट प्रोवाइड जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द मेथोडोलॉजिकल अप्रोच। रिजल्ट्स उसी में बता देते हैं कि रिजल्ट्स क्या अचीव हुए। ठीक है, फ्यू सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग द मेन आउटकम्स। और कंक्लूजन्स भी उसी में हम बता देते हैं, जो कंक्लूजन्स। इसका मतलब क्या है, आपका पूरा का पेपर का पूरा जो आप पेपर में जितने भी आपने एलिमेंट्स रखे हैं, जो भी टाइटल्स उसके अंदर सेक्शंस हैं, उन्हीं सभी सेक्शंस का आप अगर इकट्ठा करें उनका समरी, हर सेक्शन में एक समरी हो सकता है, समराइज कर सकते हैं हर एक सेक्शन को। तो वो समराइज करने के बाद जो आपका बनेगा एक बहुत कंडेंस्ड वे में वो आपका बनेगा एब्स्ट्रैक्ट। उसको 200 to 250 वर्ड्स के लिमिट में हम बनाते हैं। ठीक है, टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस रहता है जनरली। ऑब्जेक्टिव्स को हम प्रेजेंट टेंस पर रखते हैं। मटेरियल्स एंड मेथड्स जो यूज हो चुका है दैट इज पास्ट टेंस। कंक्लूजन जो है वो प्रेजेंट टेंस पर रहेगा। तो सेंटेंस मेकिंग करते वक्त भी ध्यान रखना है कि टेंस का ध्यान रखेंगे। सो व्हेन वी आर इन्फॉर्मिंग अबाउट द objectives in the abstract, they should be in present tense। जब when we are informing about the materials and methods used और results achieved, that should be in the past tense because already वो achieve हो चुका है। और conclusion जो है वो present tense में होगी because we are concluding it, we are actually analyzing it in a present way। past data पे past observation से हम लोग present observation को present conclusions को present कर रहे हैं। ठीक, इसमें citation बिल्कुल नहीं देना है। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट में साइटेशन नहीं होगा, बिल्कुल भी साइटेशन नहीं देंगे। देन कम्स द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो इंट्रोडक्शन पार्ट का मेन काम क्या रहेगा, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टेक्स्ट। किस कॉन्टेक्स्ट पे डिस्कशन चलने वाला है पूरे रिव्यू पेपर में, उसके बारे में बताते हैं। मोटिवेशन फॉर द रिव्यू इसमें डिस्कस किया जाता है। डिफाइंस द फोकस ऑफ द एंटायर रिव्यू पेपर, द रिसर्च क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेन्स द टेक्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक, तो इसमें जो है हम ये बता भी देते हैं कि आगे आने वाले सेक्शंस में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। वो इंट्रोडक्शन में भी हम उसमें लिख देते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस इसमें हम लोग जरूर लिखते हैं दैट वी आर गोइंग टू आंसर इन अवर रिव्यू पेपर। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। सो एलिमेंट्स ऑफ ए 3 पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, इसमें 3 मेन चीज़ें हम जो है इंट्रोडक्शन में डालते हैं। पहला है सब्जेक्ट बैकग्राउंड, दूसरा है प्रॉब्लम, तीसरा है मोटिवेशन एंड जस्टिफिकेशन। सो सब्जेक्ट बैकग्राउंड में जनरल टॉपिक, इश्यू और एरिया ऑफ कंसर्न इन इज गिवन टू इलस्ट्रेट द कॉन्टेक्स्ट। इसमें आप बेसिक थियोरी डिस्कस कर सकते हैं अबाउट द एंटायर आइडिया बिहाइंड द एंटायर वर्क, जो रिव्यू आपने किया है उसका थियोरी बेसिस क्या है उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। जो फॉर्मूलाज यूज हुए हैं या जो एल्गोरिदम्स यूज हुए हैं उनके बारे में एक बेसिक थ्योरी बैकग्राउंड आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन इज अ प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के ऊपर आपने रिव्यू किया है, तो ट्रेंड्स, न्यू पर्सपेक्टिव्स, गैप्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और ए सिंगल प्रॉब्लम इज इंडिकेटेड। सो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी हो सकता है या सिंगल प्रॉब्लम हो सकता है जिसको आप बताएंगे, दैट इज अ रिसर्च प्रॉब्लम, और उसी पे जो है रिव्यू हुआ है। मोटिवेशन एंड जस्टिफिकेशन, तो यहाँ पे आपका खुद का रीजनिंग होना चाहिए कि आपने इसको रिव्यू क्यों कर रहे हैं आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अप्रोच एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट आर डिस्क्राइब्ड, तो अप्रोच भी आपको बताना है कि किस प्रकार से जो है रिव्यू किया गया है। और
पूरा ओवरऑल जो अभी आगे आने वाले जो लिटरेचर है उसका पूरा जो है स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। यूज पास्ट टेंस फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ योर मेथड्स एंड योर रिजल्ट। जो अचीव कर चुके हैं उसको पास्ट टेंस में लिखेंगे, और जो आप प्रपोज कर रहे हैं, जो आइडियाज यहाँ पे आप प्रपोज कर रहे हैं, वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। साइटेशंस यहाँ पे दे सकते हैं, साइटेशंस आर अलाउड हियर। लेंथ जो है वो 10% to 20% ऑफ द कोर टेक्स्ट रहता है। तो कोर टेक्स्ट आपका जो रहेगा वो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन मिला के रहेगा। तो तीनों का मिला के जो है ये 10 या 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक। सो उसके बाद जो है मेक श्योर टू हैव अ नैरो फोकस। बहुत ब्रॉड वे में चीज़ों को नहीं बताना है, बहुत ही नैरो वे में बताएंगे, स्पेसिफिक वे में बताना है। एंड एन एक्सप्लिसिट रिसर्च क्वेश्चन। वेग क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चंस होने चाहिए जिसके आंसर्स आप जो है सर्च कर रहे हैं और बताएंगे सर्च करके यहाँ पे। इंडिकेट दीज पॉइंट्स क्लियरली इन द इंट्रोडक्शन। गिव थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जस्टिफिकेशन फॉर द नीड फॉर ए रिव्यू। तो जस्टिफिकेशन भी देना जरूरी है। तो आपके जैसे आप थीसिस भी लिखेंगे जब, तो थीसिस लिखते वक्त भी आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च क्यों किया, वो प्रॉपरली जस्टिफाइड होना चाहिए। अगर उसका जस्टिफिकेशन ठीक नहीं है तो फिर उसका फिर जो है वो एक्सेप्टेंस होने में दिक्कत होता है। सो जस्टिफिकेशन शुड बी वेरी करेक्ट, वेरी वेरी प्रैक्टिकल। सो आपने रिव्यू क्यों किया है उसका भी एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए, तो उसको आप प्रॉपरली इसमें जस्टिफाई करेंगे इन द इंट्रोडक्शन पार्ट। देन कम द बॉडी पार्ट। तो बॉडी जो ऑफ द टेक्स्ट में जो रहेगा वो पहला चीज होता है मटेरियल्स एंड मेथड्स। सो इसका काम है सिस्टमैटिक एंड बेस्ट एविडेंस रिव्यूज हैव ए मेथड्स सेक्शन। so ये जनरली हम लोग रखते हैं, सिस्टमैटिक एंड बेस्ट एविडेंस रिव्यू हम लोग ज़्यादातर करेंगे। तो दिस सेक्शन enables motivated researchers to repeat the review. Narrative reviews do not have a method or section but should include some information about the applied methods at the end of the introduction. So basically क्योंकि हम लोग जो है अप्लाइड रिसर्च कर रहे हैं तो हम लोग के पास जो है हम लोग सिस्टमैटिक और बेस्ट एविडेंस रिव्यूज को ही ज़्यादातर करते हैं, जिसमें मटेरियल्स एंड मेथड्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो उसके बारे में इसमें हम बताते हैं मटेरियल्स एंड मेथड्स। जैसे एल्गोरिथम्स हम कौन सा यूज़ कर, मतलब कौन सा यूज़ हो रहा है। अगर मशीन लर्निंग के बारे में बता रहे हैं, जो टेक्निक यूज़ किए जा रहे हैं, तो अलग अलग टाइप के मशीन लर्निंग टेक्निक्स कौन से यूज़ किए जा रहे हैं जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। डेटा मैनिपुलेशन कैसे किया जा रहा है, कौन से मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ हो रहे हैं जिससे कि जो है डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है, और डेटा को हम मैनिपुलेट करके उसको यूज़ कर रहे हैं। डेटा को रिफाइनमेंट कैसे किया गया, उसको क्लीनिंग कैसे किया गया, ये सब चीज़ें जो है वो विथ मटेरियल्स एंड मेथड जिसको हम बोल रहे हैं उसको हम लोग को प्रेजेंट करना रहता है। द मटेरियल्स एंड मेथड सेक्शन कंटेन्स फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा सोर्सेस, जैसे बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेसेस है, सर्च टर्म्स, सर्च स्ट्रैटेजीज, सिलेक्शन क्राइटेरिया, इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ स्टडीज, द नंबर ऑफ स्टडीज स्क्रीन्ड एंड द नंबर ऑफ स्टडीज इंक्लूडेड, स्टैटिस्टिकल मेथड्स और मेटा एनालिसिस। ये सब चीज़ें जो है मटेरियल्स एंड मेथड्स में आती है। जैसे अभी मैंने बताया कि जो है डेटा का प्रॉपर एनालिसिस करना, मेथड्स का प्रॉपर एनालिसिस करना, उसको सपोर्टिंग, उसके प्रूफ्स बताना, ठीक है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें बता देना, ये सब चीज़ें जो है। और मटेरियल्स एंड मेथड्स पे पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन रखना। टेंस पास्ट होगा, पास्ट टेंस यूज करेंगे बिकॉज ऑलरेडी इट इज बीन डन, वी आर परफॉर्मिंग ए रिव्यू ऑफ ऑलरेडी डन यूज्ड मटेरियल्स एंड मेथड्स। सो पास्ट टेंस में रहना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में नहीं रहेगा ये। साइटेशंस थोड़ा सा होना चाहिए, ज़्यादा साइटेशंस इसमें नहीं रहना चाहिए। क्योंकि रिव्यू है तो रिव्यू में साइटेशंस हो सकता है तो चलेगा, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकल पेपर में जब इसको कन्वर्ट कर देंगे, जैसे टेक्निकल पेपर में, तो जिसमें हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो फिर उसमें फिर आपको थोड़े से साइटेशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें भी साइटेशंस देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं। सो दिस शुड बी अप्रोक्सीमेट 5% ऑफ द कोर टेक्स्ट। सो इसका लेंथ जो है वो 5% ऑफ द कोर टेक्स्ट। कोर टेक्स्ट का मतलब है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन मिला के जितना वर्ड्स होंगे उसका 5% वर्ड्स इसमें यूज होना चाहिए। सो मेक श्योर दैट द डेटा सोर्सेज आर क्लियरली डिफाइंड। उसके जो है प्रॉपर रेफरेंसिंग और साइटेशंस होने चाहिए। डेटा कहाँ से निकाला गया है, कहाँ से देखा गया है, डेटा को कहाँ से निकाला, रिट्रीव किया गया है। प्रिसीजन हैज फर्स्ट प्रायोरिटी इन द मटेरियल एंड मेथड सेक्शन। सो डेटा का जो क्लीनिंग है, डेटा की एक्यूरेसी जो है, उसका जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो सही होना चाहिए। सो स्टैटिस्टिकली आप जो डेटा को यूज कर मतलब दिखा रहे हैं कि ये यूज हुआ है, उसका भी एक प्रॉपर स्टैटिस्टिकल बेस होना चाहिए
कि वो डेटा का प्रॉपर्टीज क्या है वो पता रहना चाहिए। जो भी डेटा यूज हो रहा है मटेरियल्स एंड मेथड्स में, तो वो डेटा का जो है प्रॉपर एनालिसिस होके वो डेटा यूज होना चाहिए। ब्लाइंडली कोई भी डेटा यूज होना, ऐसा कोई रिव्यू, ऐसा कोई पेपर को आपको इंक्लूड नहीं करना है अपने रिव्यू में। ठीक। देन इन द बॉडी सेक्शन इटसेल्फ वी हैव द मेन पार्ट ऑफ द रिव्यू, जहाँ पे हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। सो द कोहेरेंट structuring of the topic is necessary to develop the section structure. So this is proposed by BEM 1995. आप देखेंगे ये जो है एपीए स्टाइल में, इसमें हम लोग ने लिखा है, रेफरेंस दिया है, साइटेशन दिया है। Subheadings reflect the organization of the topic and indicate the content of various sections. Possible criteria for structuring the topic are methodological approach, ठीक है, जो methods use हुए हैं, models or theories which are being used in the uh, already done work, extent of support for a given thesis, ठीक, studies that agree with another versus studies that disagree। ठीक, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टडीज भी हों, उनको भी आप कंपेयर करके दिखा सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक, डेट वाइज, ईयर वाइज क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, जियोग्राफिकल लोकेशन, इस पे बेसिस पे भी जो है वो एनालिसिस किया जा सकता है। ठीक। पैराग्राफ स्ट्रक्चर कैसा होगा? कवर वन आइडिया, एस्पेक्ट और टॉपिक पर पैराग्राफ, अवॉइड रेफरिंग टू ओनली वन स्टडी पर पैराग्राफ, कंसिडर सेवरल स्टडीज पर पैराग्राफ। एक तरीके का कंपैरिजन होना चाहिए, कंपैरेटिव होना चाहिए, कंपैरिजन बहुत जरूरी है। कंपैरेटिव अगर आप करके दिखाएंगे तो इट इज द बेस्ट वे ऑफ रिव्यूइंग। फ्रीक्वेंटली लिंक द डिस्कस्ड रिसर्च फाइंडिंग्स टू द रिसर्च क्वेश्चन स्टेटेड इन द इंट्रोडक्शन। सो रिसर्च क्वेश्चन जो ऑलरेडी हम लोग ने प्रपोज किए थे शुरू में इंट्रोडक्शन पार्ट में, उससे लिंक करते हुए आप बताएंगे कि उसका आंसर ये है, उसका आंसर ये है। दीज लिंक्स क्रिएट द थ्रेड ऑफ ए कोहेरेंस। ये कोहेरेंस बताता है कि पूरा का पूरा जो आपने लिखा है वो कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। कोहेरेंस का मतलब इंटरकनेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्शन को कोहेरेंस बोलते हैं। लिंक द स्टडीज ऑफ टू वन अनदर, कंपेयर एंड डिस्कस दीज रिलेशनशिप्स। ये जनरली हम लोग टैबुलेटेड फॉर्मेट में बताते हैं कि एक पर्टिकुलर, जैसे मशीन लर्निंग टेक्निक यूज किया गया, उस मशीन लर्निंग टेक्निक को यूज करके डेटा अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट्स मिले, सो एक मशीन लर्निंग से ये आउटपुट मिला, दूसरे मशीन लर्निंग से ये आउटपुट मिला, तीसरे मशीन लर्निंग टेक्निक से ये आउटपुट मिला। तो पहले वाले ऑथर के इंफॉर्मेशन आप साइटेशन दे देंगे, दूसरे वाले ऑथर का साइटेशन देंगे, तीसरे ऑथर का, फिर एक कंपेरेटिव आप एक टेबल बना देंगे। उसके बाद आप फिर बताएंगे कि ये जो रिजल्ट इनमें से आया है उसका फिर आप एनालिसिस करके बताएंगे। तो इस टाइप से जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस कब यूज करेंगे? रिपोर्टिंग व्हाट अनदर ऑथर थिंक्स, जैसे द पर्टिकुलर ऑथर हैज प्रपोज्ड ऐसे करके हम लिखते हैं, तो रिपोर्टिंग दैट व्हाट अनदर ऑथर थिंक्स अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। बिलीव्स और राइट्स, रिपोर्टिंग करंट नॉलेज और इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल वैलिडिटी। सो इसमें जो है कैसे लिखना है? इट इज बिलीव्ड, उसके बाद फिर आप उस ऑथर का जो है रेफरेंस दे सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस कब यूज करेंगे? रेफरिंग टू व्हाट अ स्पेसिफिक रिसर्चर डिड और फाउंड, रेफरिंग टू अ सिंगल स्टडी। एक सिंगल स्टडी पे जो है वो उसने वो पर्टिकुलर आउटपुट उसने जो है जनरेट करके दिखा दिया था, तो दैट इज पास्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज करेंगे? रेफरिंग टू एन एरिया ऑफ रिसर्च विथ ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स इन्वॉल्व। तो सब मिल के जो है अलग अलग इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का अलग अलग आपने पेपर्स को स्टडी करके जो है दे फाउंड दैट, ऐसे करके आप उसमें लिख सकते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट। आप कंटेंट क्या उसमें डाल रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए, टेंस को ध्यान में रखते हुए बनाना है। तो ये ग्रामेटिकली जो है शुड बी करेक्ट। देन साइटेशंस जो है वो रहेंगे, इसमें साइटेशंस होना चाहिए। तो इनडायरेक्ट बट इन सम केसेस पॉइंटेड एंड रेलेवेंट रिमार्क्स माइट बी साइटेड डायरेक्टली। सो ये डायरेक्ट, इसमें जनरली हम लोग डायरेक्ट साइटेशंस ही देते हैं। ठीक है। सो इनडायरेक्ट साइटेशंस भी दिया जा सकता है। द ऑथर्स नेम और ए नंबर रेफरिंग टू रेफरेंस लिस्ट appears in brackets, non-integral references emphasize the idea, result or theory etc rather than क्या होता है कि जो एक वो है, जैसे एक थ्योरी को जो है वो किया गया है, डेवलप किया गया है बाय मेनी ऑथर्स, तो आप फिर जो है मोर देन वन ऑथर्स का रेफरेंसेस उसमें देंगे एक पर्टिकुलर थ्योरी के को बेस करते हुए। जैसे एक पर्टिकुलर थ्योरी जो है डेवलप हुआ है थ्रू टाइम,
जैसे मैंने अभी कहा था कि जैसे 2011 में उसी थ्योरी पे कुछ काम हुआ, फिर 2012 में काम हुआ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, कि जो मशीन ये अपना ये है न्यूरल नेटवर्क्स पे जो है, एक काफ़ी थ्रू इयर्स जो है वो उसमें डेवलपमेंट हुआ था। तो न्यूरल नेटवर्क्स पे जब डेवलपमेंट हुआ तो मेनी ऑथर्स हैव वर्कड ऑन द न्यूरल डेवलपमेंट ऑफ द न्यूरल नेटवर्क्स फॉर मशीन लर्निंग। सो उस पे जो है आप दे सकते हैं एक एक करके जो है जो आपके जो ऑथर्स के नेम दे सकते हैं जो डेवलप कर रहे हैं थियोरी को। सो दैट इज इनडायरेक्ट रेफरेंसेस। डायरेक्ट रेफरेंसेस में जो एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर थ्योरी इसने प्रपोज किया था और वो थ्योरी जो है वो एक्सेप्टेड हो चुका है और वो सब लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली उसका एक पर्टिकुलर ऑथर का नेम देके यू कैन पॉइंट आउट। लेकिन साइटेशन बहुत जरूरी है इसमें, द साइटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रिलेवेंट जो है वो रेफरेंसेज में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। लेंथ जो है ये मैक्सिमम लेंथ इसका रहेगा 70 to 90%। ये आपका मेन बॉडी है। सो मेन पार्ट ऑफ द एंटायर रिव्यू आर्टिकल इज हियर। सो यहाँ पे आप जितना भी आपका कंटेंट है यहीं पे रहेगा जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं। So it should be covering the 70 to 90% of the entire text. So make sure to organize the different pieces of information into a line of argument. So लॉजिकल वे में उसको आपको सेट करना है आपके ऑब्जर्वेशंस को। An appropriate organization of information is all important for the quality of a review. Throughout, it is important that the topic or the idea drives the article and not the literature used. So you have to pave a way। आपको एक पाथ बना के एक के बाद एक चीजों को बताते हुए जैसे कहानी जैसे बताते हैं, कहानी के जैसे बताना है एज ए स्टोरी। यू हैव टू पुट योर आइडियाज। तो इस टाइप से जो है ये ज्यादा मतलब एक तरीके का स्टोरी टेलिंग जैसा रहता है, क्योंकि रिव्यू जो होता है वो स्टोरी टेलिंग ज्यादा होता है। लेकिन नो, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। देन सर हाँ जी। सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला रेफरेंस वाला बता रहे थे, फिर से एक बार रिपीट करेंगे? देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में एक बहुत बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जैसे मैंने अभी कहा ना कि एक एक थ्योरी को सोच लीजिए, थ्रू टाइम ए पर्टिकुलर थ्योरी हैज डेवलप्ड। मतलब सेम थ्योरी है जो किसी ने जैसे 2011 में 2011 में एक थ्योरी प्रपोज किया किसी ने, और उस थ्योरी को जो है ना धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है। तो जो डेवलप कर रहे हैं वो अलग अलग ऑथर्स उसको डेवलप कर रहे हैं, सेम थ्योरी को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग ऑथर्स डेवलप कर रहे हैं। तो वो जो रेफरेंसिंग होगा वो मल्टीपल ऑथर्स जो है वो एक ही थ्योरी को आपको रेफरेंस दिखाना पड़ेगा, साइटेशंस दिखाने पड़ेंगे। ठीक है। सो उसको हम कह सकते हैं, उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट रेफरेंसेस होते हैं वो। ठीक है। सो तो उसको हमने इनडायरेक्ट रेफरेंसेस कहेंगे। और अगर एक थ्योरी जो एक पर्टिकुलर ऑथर ने प्रपोज किया था वही थ्योरी सब लोग यूज कर रहे हैं विदाउट एनी चेंजेस, तो वो हो गया उसका डायरेक्ट रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि अगर थ्योरी डेवलप हो रहा है थ्रू टाइम तो उसमें मल्टीपल ऑथर्स के नेम इंक्लूड होते हैं। अगर एक ही थ्योरी जो है तो वो चेंज नहीं हुआ लेकिन उसी को बार बार लोग यूज कर रहे हैं, तो दैट इज अ सिंगल ऑथर थ्योरी। तो मल्टी ऑथर थ्योरी अगर है तो वो इनडायरेक्ट रेफरेंसेस के कैटेगरी में आ जाएगा, और अगर सिंगल ऑथर थ्योरी है तो वो डायरेक्ट रेफरेंस के कैटेगरी में आएगा। ठीक है। तो ये जो ऑथर का कंट्रीब्यूशन एक्चुअली बताते हैं। ठीक। सो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में एक बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। यस सर, थैंक यू। वेलकम। ठीक, नेक्स्ट जो है कंक्लूजन पार्ट आता है। कंक्लूजन पार्ट जो है आंसर्स द क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन सेट इन द इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में जो इनिशियल पार्ट में फर्स्ट जो आपका एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो पार्ट था उस पे जो आपने रिसर्च क्वेश्चंस प्रपोज किए थे, जो बताए थे जो कि उसके आंसर्स हम ढूंढ रहे हैं, तो कंक्लूजन में उनके आंसर्स को बताना है फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ द रिसर्च, फ्रॉम द रिव्यू दैट वी हैव डन। सो इम्प्लीकेशंस ऑफ द फाइंडिंग्स, ये हमने क्या फाइंड किया, या ये मतलब जो है हमारा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने क्या फाइंड आउट किया इस पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के बाद, ये पूरा जो है रिव्यू करने के बाद हमने क्या फाइंड किया। और इंटरप्रिटेशंस बाय द ऑथर्स, जो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट किया गया था ऑथर्स का, उसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशंस करना, अपना खुद का इंटरप्रिटेशंस और फाइंडिंग्स बताना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस, अगर ये ये रिसर्च गैप बताता है
आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनरिजॉल्व क्वेश्चंस जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, ठीक है, ये आप अपने फ्यूचर रिसर्च पे सॉल्व करेंगे, या ये जो है एक तरीके का फ्यूचर क्वेश्चंस बन जाते हैं फॉर देयर इज अ गैप, इसको रिसर्च गैप बोलते हैं, वो हमको अब मिल जाता है यहाँ से। तो फाइंडिंग्स बता रहे हैं, ठीक, हमने उसमें से क्या इंटरप्रेट किया वो हम बता रहे हैं, हमारे खुद के भी उसमें कुछ व्यूज आ जाएंगे, और जो ऑथर्स ने बताए थे, मतलब हम फैक्ट्स को ही मद्देनजर रखते हुए कुछ कंक्लूजन्स देंगे, उसमें कुछ हमारे इनोवेटिव फाइंडिंग्स देंगे, और आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि कौन से अनरिजॉल्व क्वेश्चंस हैं दैट आर अनआंसर्ड। वो अनरिजॉल्व क्वेश्चंस जो है वो रिसर्च गैप बन जाएंगे, और वो रिसर्च गैप पे लोग जो है आगे काम करके अपना रिसर्च जो है आगे बढ़ा सकते हैं। टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस रहेगा, समराइजिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, रेफरिंग टू एन एरिया ऑफ रिसर्च और ए बॉडी ऑफ लिटरेचर। तो टेंस शुड बी प्रेजेंट टेंस, इसको भी ध्यान रखना है। सो साइटेशंस यहाँ पे नहीं देते हम लोग, यहाँ पे बिल्कुल साइटेशंस हम नहीं देंगे, कंक्लूजन में कोई साइटेशन देना नहीं है। लेंथ जो है वो 5 to 10% ऑफ द एंटायर टेक्स्ट होना चाहिए, उसको ध्यान में आप रख सकते हैं कि इट शुड नॉट बी वेरी बिग। एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में इसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, या 3 मैक्सिमम 2 पैराग्राफ से ज़्यादा इसमें लगता नहीं है। सो मेक श्योर टू हैव अ क्लियर टेक होम मैसेज, जो उसको पढ़े कंक्लूजन को, तो दैट पर्सन शुड बी इंस्पायर्ड फ्रॉम द कंक्लूजन। जैसे अभी मैंने कहा कि आप रिसर्च गैप्स बता दें, तो उसको एक जो है दिमाग में रहे कि हाँ, इस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर से हमने, रिव्यू पेपर से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि रिसर्च गैप्स क्या है, और आगे इसमें रिसर्च कैसे और किया जा सकता है। सो दैट इंटीग्रेट्स द पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस इन द रिव्यू। मेक श्योर योर कंक्लूजन्स आर नॉट सिंपली अ रिपीट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जो सेंटेंसेस आपने एब्स्ट्रैक्ट में यूज किए हैं एग्जैक्टली उसको यूज नहीं करना है। तो थोड़ा ध्यान में रखना है, आपको रिफ्रेजिंग करना पड़ेगा, पैराफ्रेजिंग करना पड़ेगा। सो ध्यान में ही रखना पड़ता है, क्योंकि लिखना बहुत पड़ता है, इसलिए कई बार क्या है कि हम लोग थोड़ा सा वो आलस आ जाता है हमको। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट में जो टेक्स्ट लिखा था उसी को कॉपी कर दिया है कंक्लूजन में। ये बिल्कुल ना करें, इससे क्या होता है कि एक इंप्रेशन बहुत खराब पड़ता है, और रिपीटेड टेक्स्ट अच्छा नहीं होता। कभी भी जो है रिपीटेड टेक्स्ट यूज नहीं करेंगे। जो सेंटेंस बनाएंगे वो जो है क्रिएटिवली नया नया सेंटेंसेस बनाइए, भले ही उसका मीनिंग सेम हो, लेकिन उसको नया नया सेंटेंसेस बनाएं। तो इंग्लिश राइटिंग स्किल्स जो है वो अच्छा रहना चाहिए हमको, ग्रामर सही होना चाहिए, टेंस हमको प्रॉपर यूज करना है, ठीक। देन कम्स द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन। एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में जो है इट सर एक डिपेंड। चीज पूछना था सर। जी जी। सर जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे हमारा जो टॉपिक रहेगा, मेरा जो जी सपोज टॉपिक रहेगा, मैं उस टॉपिक में करीब 20-30 पेपर्स देख देख रहा हूँ। जी तो जी। उसमें से जो मुझे अगर कभी कोई पेपर में थोड़ा सा ज्यादा गैप दिखा, तो हम्म। मैं उनकी वो गैप देखने से मुझे उनके थीसिस से, अगर मुझे मैं उसको और एक्सटेंड कर दूंगा तो दैट विल बिकम माई ऑल्सो थीसिस, तो वो प्लेगरिज्म में आएगा क्या सर? नहीं नहीं आएगा। जो रिसर्च गैप पे अगर आपने काम किया है ना, तो वो हाँ। आपका इंडिविजुअल रिसर्च हो जाएगा ना, दैट इज नॉट बीन डन ना, इसी तो गैप है वो। तो वो मैडम सर, वो जो अगर वो गैप्स को मैं अगर अपना थीसिस वे में फिर रिसर्च पेपर अगर निकाल देता हूँ, देन इट विल बी वो थीसिस में माना जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, वो माना जाएगा, क्योंकि तो गैप, रिसर्च गैप इज समथिंग विच इज अनएक्सप्लोर्ड येट। तो आपने ओके। एक्सप्लोर कर लिया, सो इट इज योर ओन रिसर्च, सो देयर इज तो इनोवेशन यू हैव इंस्टेड डन। तो instead of presenting showing a gap in the research paper, why can't we directly do for thesis and present that for a doctoral degree, and then we can go for research? नहीं वो नहीं कर वही सकते हैं क्या सर? नहीं वही डॉक्टरेट डिग्री जो आप अभी जो आप करोगे ना, डॉक्टरेट डिग्री जो आपका मिलेगा ना आपको, हम्म। वो रिसर्च गैप को कंप्लीट करके जो आपने जो प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा, तभी जाके हाँ आपका मतलब, थीसिस बनेगा। जो गैप मुझे मिला है वो गैप को मैं हाँ सॉल्व करके उसको थीसिस बना हाँ के मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, दैट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट ना, थीसिस राइट राइट फाइनल राइट। प्रोडक्ट बन जाएगा वो। लेकिन राइट। इंटरमीडिएटली आपको जब जाना है तो पहले आपको तो लिटरेचर सर्वे करना पड़ेगा, एक बिल्कुल रिव्यू बिल्कुल। आर्टिकल बनाना पड़ेगा। रिव्यू आर्टिकल ओके। बनाने के बाद आप रिसर्च गैप उसमें से निकाल लेंगे, उस रिसर्च गैप पे हम्म। फिर आप वर्क करना शुरू कर देंगे, हम्म। और फिर एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाल के दिखाएंगे, फिर एक पेपर पब्लिश करेंगे उस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन का, तो आपके राइट पास सर। 2 पेपर हो जाएंगे। हाँ तो रिसर्च गैप में सर मुझे राइट फ्रॉम स्क्रैच नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी कम सम वर्क हैज बीन डन, हाँ हाँ दैट कैन बी डेफिनेटली, यूज्ड एज, है ना? डेफिनेटली वैसे ही करना है। स्क्रैच में से करने बैठेंगे तो फिर तो कई साल लग जाएंगे। राइट राइट। मैं हाँ हाँ सर, पार्थर सर, संजय शर्मा बोल रहा हूँ सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर, बोलिए। हाँ सर, मैंने एमटेक में अपना ये थीसिस किया था,
optimize जी coordination of the economic load dispatch and load frequency control. जी जी तो एक्चुअली मैंने इसमें जब थीसिस किया तो मैंने कई सारे पेपर्स रेफर किए थे, जर्नल्स भी, और मैंने जी एक्चुअली मैं इस सब्जेक्ट में पढ़ा भी हूँ पावर सिस्टम्स का। हम्म। तो मैंने ये पाया कि मैंने इसका जो एक पार्ट को हर पेपर में सॉल्व किया हुआ है, जैसे लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के बारे में डिटेल दिया जी और उसको सिमुलिंक मॉडल से और मैटलैब से सॉल्व किया है, जो मैंने भी किया। हम्म बट जो इकोनॉमिक डिस्पैच है उसको लिंक नहीं किया इसके साथ, जिसको मैं कह सकता था ऑप्टिमाइज कोऑर्डिनेशन। जी उसको मैंने इंडिपेंडेंटली निकाल के रिसर्च करके मैंने उसका सोल्यूशन निकाला और मैंने प्रेजेंटेशन भी दिया और मैंने सिमुलेट। तो ये जो मुझे एक रिसर्च गैप दिखा कि ये भले वो टॉपिक कॉमन है बट जी जी सेकंड पार्ट को सॉल्व करके इसको लिंक नहीं किया। करेक्ट करेक्ट तो लिंक में मैंने उसका निकाला, तो दैट आई कैन ऑलवेज प्रेजेंट इन माय थीसिस ना। डेफिनेटली ये तो आपने इनोवेशन किया ना, दैट वाज नॉट हाँ, डन अर्लियर। मैंने निकाला उसको पढ़ करके। बिल्कुल बढ़िया, जबकि बहुत टॉपिक बढ़िया है। में बहुत सारे ऑथर्स ने लिखा था, बट कहीं पर भी मुझे कितने जर्नल्स पढ़ लिए, मुझे सेकंड पार्ट किसी ने नहीं करके दिखाया कि कैसे किया जाता है बस लिंक। दैट इज द रिसर्च गैप। तो मैं वही मैडम हमारी जो सर शाश्वती, जस्ट होल्ड ऑन, शाश्वती जो हमारी वो जो है मेरी टीचर है, हाँ उनसे मैंने डिस्कस भी किया था और वो बोली थी कि ये हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जस्ट आई हाँ, वांटेड टू आस्क। ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब आपने एक ऐसा चीज फाइंड आउट कर लिया जिसने जो किसी ने किया नहीं है, तो ये बहुत ही हाँ, नोवेल मुझे कहीं आइडिया है। मिले नहीं, मैंने बहुत पेपर्स पढ़े बट मुझे हाँ, वो लिंक नहीं मिला, तो और मैंने अपना डेफिनेटली स्टडी इसको करके पब्लिश निकाला करिए, मैंने। आपका एससीआई में डेफिनेटली पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, आई ट्राई। वेलकम। सर गुड इवनिंग सर। सर गुड मुझे इवनिंग। रिसर्च गैप की एग्जैक्ट मीनिंग समझना है कि हम रिसर्च गैप कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स हमने भी पढ़ा है जी जी बट चिन्नी उसमें हर एक मेथड चिन्नी में अलग अलग चिन्नी, मेथोडोलॉजी यूज की गई है, हर एक जगह मैंने में अपना अलग अलग उससे एल्गोरिदम यूज पूछा किया है। प्रोफेसर से देन कि हम मैंने कैसे ये समझ किया था सकते और हैं कि मैंने वो सेकंड पार्ट रिसर्च जो है मैंने खुद किया था गैप इस पेपर एक का मिनट और ये एक रिसर्च इस गैप में पेपर के आता है। रिसर्च गैप, ये तो कहता रिसर्च आपने तो गैप पूरा हो अच्छा किया, सकता आप है, तो यू कैन ऑलवेज गिव अ वो पेपर ऑन कैसे दिस। समझेंगे आपने हम? नया चीज किया है, यू कैन ऑलवेज गिव अ न्यू एक चीज। सेकंड मैम। तो शाश्वती भी बोल रही थी, कहते इसको रिप्रेजेंट करो ना। तो जस्ट आई वांटेड टू टेल यू कि मैंने थोड़ा सा जो मेहनत की। हाँ मैम बोलिए आवाज उनका आ रहा था। हाँ मैम प्लीज बोलिए। जी सर, वो मैं पूछना चाह रही थी कि रिसर्च गैप के लिए एग्जैक्टली हम क्या समझ सकते हैं। रिसर्च गैप एक्चुअल में क्या है, हमने भी बहुत सारे पेपर पढ़ा था, 25-30 पेपर्स लिटरेचर सर्वे देखा था। जी जी उसमें हर एक पेपर्स में हर एक साल के अलग अलग मेथोलॉजी यूज की गई, ठीक एल्गोरिदम यूज किया है। ठीक है। सर तो ये कैसे जान पाएंगे कि इनके इनके गैप, मतलब रिसर्च गैप कैसे समझ पाएंगे हम सब पेपर देखिए से? पॉइंट ये होता है ना मैम, जैसे आप लिटरेचर पढ़ेंगे ना, जैसे किसी भी, जैसे एक पेपर को आप पढ़ रहे हैं, उसके ना आप सीधे सीधे जाके ना उसके लास्ट सेक्शन में, कंक्लूजन सेक्शन में आप जाएं। मतलब इंट्रोडक्शन सेक्शन को पढ़ लें। इंट्रोडक्शन के बाद उसमें जो क्वेश्चंस प्रपोज किए गए थे उन क्वेश्चंस को समझ लें, और उसके बाद फिर आप जो है सीधे कंक्लूजन सेक्शन पे जाएं। कंक्लूजन सेक्शन पे जाने के बाद आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर्स दिखने चाहिए। अगर वो क्वेश्चन के आंसर्स अभी भी नहीं दिए हैं उसमें कंक्लूजन में, कुछ क्वेश्चंस का हो सकता है आंसर अनआंसर्ड रहेगा, तो दैट जी इज अ सर। रिसर्च गैप, दैट कैन बी ओके अ रिसर्च गैप। ठीक है। ओके सर। अब हाँ जी सर। वो एक तरीका हुआ। दूसरा जो है, जी कई बार कई पेपर्स में लास्ट में क्या बोलते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स या फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च के ऊपर भी एक जी अलग से सर। सेक्शन दे देते हैं। दैट इज हाँ ऑल्सो जी एक सर। प्लेस वेयर कैन फाइंड अ रिसर्च गैप। अब पॉइंट जी ये होता है कि जो चीज आपने फाइंड किया, आपने सोचा कि वो रिसर्च गैप है, ठीक है, आपको यस लगा सर। कि वो रिसर्च गैप है, अनआंसर्ड है, जी लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको जो है उसके वो रिसर्च गैप पे फिर रिसर्च करके देखना पड़ेगा कि वो रिसर्च गैप कहीं कंप्लीट तो नहीं हो गया, किसी ने सॉल्व तो नहीं कर दिया उसको। अच्छा। हाँ, हाँ जी उस पे सर। फिर आपको एक्सटेंसिव रिसर्च करना पड़ेगा कि वो रिसर्च गैप किसी ने कंप्लीट तो नहीं कर लिया। अगर नहीं ओके किया सर। है, आपने जो है हाँ जैसे जी। एससीआई और स्कोपस में ढूंढ लिया, जी। और आप सेटिस्फाइड हो गए कि अब वो रिसर्च गैप को किसी ने फुलफिल नहीं किया था, तब फिर जी दैट सर। बिकम्स अ वैलिड रिसर्च गैप जिस पे फिर आप वर्क कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि आपका जो रिसर्च गैप जो आइडेंटिफाई करेंगे वो ऐसा होना चाहिए जो यूनिक होना चाहिए, मतलब दैट हैज नॉट बीन डन अर्लियर, क्योंकि ओके। वही टॉपिक जो है वो एचसीआई या स्कोपस में एक्सेप्ट होगा, क्योंकि दे ओनली अच्छा। एक्सेप्ट नोवेल आइडियाज। ऑलरेडी यस सर। अगर हो चुका है वो, उस आइडिया को अगर आप फिर से थोड़ा मॉडिफाई करके प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा। तो जी रिसर्च सर, गैप थैंक यू। फाइंड करने के लिए भी आपको फिर वो रिसर्च गैप है कि नहीं
उसको करने के लिए भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अच्छा सर, मतलब उसके लिए भी हमें अलग से पेपर और भी हाँ, पढ़ना लिटरेचर पड़ेगा। रिव्यू उस पे करना पड़ेगा सर, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो अच्छा रिसर्च गैप है। जी, हाँ जी सर, ठीक है ना। तो जनरली हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कैसे कि जैसे लेटेस्ट आप पेपर पढ़िए 2019 और 20 का, है जी। और उसमें आपको रिसर्च गैप अगर मिल जाए तो उसका हाँ जी, चांसेस ऐसा होता है कि वो सॉल्व नहीं हुआ होगा अभी तक। ओके। है ना। दैट इज द बेस्ट वे जी ऑफ सर, फाइंडिंग द रिसर्च गैप। तो जी पुराने सर, पेपर्स को रेफर ना करें, क्योंकि रिसर्च गैप उसमें अगर होगा, हो सकता है वो कंप्लीट, मतलब किसी ने कंप्लीट कर लिया हो उसको। हाँ जी सर, है ना। तो जी दैट कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। सर। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेपर हमने पढ़ा है जिसमें शुरू की मतलब सिर्फ एल्गोरिदम के डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम यूज किया गया, डिफरेंट डिफरेंट हम्म टेक्निक यूज किया गया, और हम्म उस टेक्निक का कंपेयर किया गया है, एंड देन उसकी मतलब वो कितना एफिशिएंट है, कितना हम्म परसेंटेज वो प्रॉपर डिटेक्ट कर रहा है सारी चीजें। उस हाँ टाइप के पेपर्स ज्यादा हमें मिले हैं, जो हम्म शुरू से वही चीजें चल रही है, हम्म और अभी रिसेंट में भी वैसी कुछ दिख रही है, उसी तरह की दिख रही है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था कि वो रिसर्च गैप उसमें से कैसे निकाला जा सकता है। रिसर्च गैप मैम, जैसे ऑलरेडी जो एल्गोरिथम्स अप्लाई करके कोई कंपैरिजन दिखा रहा है, तो वो उसने जो है क्या किया होगा, कोई ऑलरेडी जैसे एक स्टैंडर्ड डेटा पे किया होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप डेटा चेंज करके जो है उन एल्गोरिथम्स को अप्लाई करके देख सकते हैं। अच्छा तो वो दैट जी एक्सपेरिमेंट कैन ओके बी सर, डन। हाँ जी सर, तो जैसे ठीक क्या ठीक होता है ना ठीक। कि कई यस लोग सर, जो है सोचिए डायबिटीज डेटा पे वर्क किए हैं, ठीक है। यस आप सर, उसी उसी हाँ एल्गोरिदम जी, के उन टेक्निक्स को यूज करके आप जो है किसी और टाइप के डेटा पे, स्टॉक मार्केट डेटा पे काम कर लीजिए। ओके, ठीक हाँ है। जी सर, तो ठीक। दैट डायरेक्शन मतलब कैन ऑल्सो, डेटा चेंज करना है हमें डेटा बस। चेंज करके भी कर सकते हैं जो पहले किसी ने नहीं किया हो। अब वो भी देखना पड़ेगा यस कि सर, पहले किसी ने उन टेक्निक्स को उस डेटा पे यूज नहीं किया हो, तब जाके फिर वो नोवेल बनेगा। ओके, हाँ है ना। तो इसके लिए ठीक क्या ठीक। होता है ना, काफी जी सर, सर हम जो है। लोग ऐसा भी जी। सर, मतलब मैं ये बोलना चाह रही थी कि यदि हम कुछ मतलब यदि हम ऐसे थियोरेटिकली जैसे सिमुलेशन करके उसी हाँ चीज हाँ को हम हार्डवेयर में यूज करके करें, मतलब उसको हम्म, हम लोग हार्डवेयर में उसे हम एग्जैक्ट मतलब प्रैक्टिकली उसको दिखा दे, तो हाँ। इज इट वो भी सफिशिएंट होता है रिसर्च के लिए? देखिए तो जैसे सिमुलेशंस के हमने हाँ सॉफ्टवेयर में सिमुलेशंस किसी चीज को किया है, हाँ किसी हाँ डेटा को लेकर सिमुलेट किया है, आफ्टर मतलब रनिंग करके पूरे हाँ मॉडल को हाँ रनिंग हाँ करके सिमुलेशन करा के, देन आफ्टर दैट मैंने उसको प्रैक्टिकली हार्डवेयर से उसको लिंक करके मैंने उसे एग्जैक्टली मतलब उसके रिजल्ट को मैंने मतलब रिजल्ट को हमने अप्रूव मतलब सही बताया कि ये हाँ इट हाँ इज करेक्ट, हाँ देन हाँ। वो भी सफिशिएंट होता है क्या रिसर्च के अब लिए? वो भी हो सकता है, लेकिन उस टाइप का काम जो है वो हमारा काम जो रिपीटेड नहीं होना चाहिए, मतलब ऑलरेडी किसी ने कर चुके हैं, यस सर, वही हाँ चीज हम जी फिर सर, से कर रहे हैं, तो फिर वो फिर नोवेल्टी नहीं रहता उसमें। ओके सर, है ना। तो जी सर, मेन मेन इंटेंशन यही है कि जो है नोवेल्टी क्रिएट करना है, जो पहले किसी ने नहीं किया वो हमने किया है, सीधी सी जी बात। सर। सर क्योंकि कुछ पेपर्स हमने ऐसा पढ़ा था जिसमें उन्होंने सिमुलेशन करवा के हम्म उसको अप्रूव करवाया, उसने हार्डवेयर से लिंक करवा के उसने वो रिजल्ट को मतलब हमारे सिमुलेशन का रिजल्ट और हाँ हार्डवेयर के रिजल्ट को वो कम, उसने चेक करवाया है, तो हाँ वो कंपेयर किया उसके और पे जी हाँ सर, उससे पेपर भी उनके पब्लिश भी हुए, मतलब हाँ मैंने हाँ ऐसे कुछ बिल्कुल कुछ वो तो। पेपर्स देखा है सर। हाँ हाँ कुछ कुछ हार्डवेयर ऐसे होते हैं जैसे एनआईटीज आईटीज में कुछ कुछ ऐसे हार्डवेयर होते हैं, हाँ 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 देखा था, इस वजह से ही पूछा था हमने कि हाँ वो हाँ भी बिल्कुल। मतलब सफिशिएंट होता है ना वो भी हाँ हाँ चीजें। वो होता है, होता है। वो जी मतलब सर, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस पे रहता है, वो भी वैलिड होता है, एकदम वैलिड होता जी सर, थैंक यू सर। है। वेलकम। सो लास्ट लास्ट जो वो सेक्शन है। सर हाँ जी सर, जी। हाँ जी बोलिए। मैम ने जो कहा है उसी पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे जी हमारा जी जो रिसर्च का जो टॉपिक है उसके लिए जैसे आपने बोला कि 1920 का को प्रीफर कीजिए, तो 2020 का मैक्सिमम हाँ। हम लोग कितना पीछे जा सकते हैं सर जैसे अपने टॉपिक को? देखिए, अगर रिसर्च गैप ढूंढना है तो 2018, 2019, 2020 इस पे ढूंढिए, लास्ट जी 3 इयर्स या रिसर्च गैप अगर ढूंढना है। और अगर आपको लिटरेचर रिव्यू करना है तो फिर तो आपको लंबा ढूंढना पड़ेगा, पिछले पिछले 10 साल का या 5 साल का पेपर तो कम से कम रिव्यू करना ही पड़ेगा। 5 इयर्स का तो करते ही हैं कम से कम। या ओके सर, है ना। हाँ थैंक यू सर। ठीक है। तो जो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो एक्नॉलेजमेंट्स का सेक्शन आएगा।
जहाँ पे जो है एक्सप्रेशन ग्रेटिट्यूड टू द पीपल हु हैव हेल्प्ड इन द लिटरेचर सर्च। तो यहाँ पे जो है हम लोग जनरली वो सब अपने को ऑथर्स का, अपने फंडिंग एजेंसीज का और हमारे जो मेंटर्स हैं उनका नेम वगैरह यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं और उनका फुल नेम विद देयर स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। और ग्रेटिट्यूड हमारा एक्सप्रेस करते हैं, प्रेजेंट टेंस यूज करना है, और यहाँ पे कोई साइटेशंस यूज नहीं करेंगे। और लास्ट सेक्शन जो आएगा रेफरेंसेस वाला सेक्शन आएगा, जितने भी साइटेशंस हमने अपने पूरे वर्क में यूज किया, पूरे अभी जो जितना भी टेक्स्ट हमने बनाया था लिटरेचर रिव्यू का, उसमें जितने भी साइटेशंस हमने यूज किए सभी साइटेशन जो है उनका डिटेल जो है वो रेफरेंसेस वाला एक अलग से सेक्शन बनाएंगे, इसमें पूरा डिटेल्स होना चाहिए। सो जो हम लोग ने एपीए स्टाइल देखा था या एमएलए स्टाइल देखा था उसके फॉलो करते हुए हम लोग इसको बनाते हैं। सो ये हेल्प करता है रिसर्चर्स को और आगे का रिसर्च करने के लिए, इनको पढ़ते हैं लोग और आगे का अपना रिसर्च को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। सो जनरली हम लोग जो है 100 मैक्सिमम 100 साइटेशंस या 100 साइटेशंस ज़्यादा देते नहीं है। अगर एक पेपर बना रहे हैं रिव्यू पेपर, 50 से 100 साइटेशंस देते हैं जनरली, उसके रेफरेंसेस बनाते हैं। और अगर हम थीसिस बना रहे हैं तो 100 से 150 तक दे सकते हैं, लेकिन कम ही रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा साइटेशंस की ज़रूरत नहीं होती। सो दिस हेल्प्स टू कंप्लीट आवर रिव्यू पेपर। So these are the sections that are there in the review paper. So एक ये सैंपल मैं आपको बता देता हूँ। I will just share the sample here. सर एक और क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। सर साइटेशंस के जो हम लोग नंबरिंग देते हैं और जी वो रेफरेंस के जो रेफरेंस में जो हम पेपर्स के नंबरिंग देंगे वो एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए हमेशा। हाँ, साइटेशंस जितने हैं, जैसे अगर आपने 50 साइटेशंस दिए हैं तो 50 जी। रेफरेंसेस होने चाहिए, मतलब 50 एंट्रीज, उन्हीं 50 साइटेशंस के 50 जी। जो एंट्रीज हैं वो डिटेल जो है उसके वो होने चाहिए। अच्छा सर, हम लोग रैंडमली ले सकते हैं? जैसे यहाँ पे रेफरेंस में हमने रेफरेंस के मैंने शायद 1, 5, 6 ऐसे मैंने कुछ पेपर्स लिया है और उसके साइटेशन मैंने अंदर में इंट्रोडक्शन पार्ट में किया है। हाँ, तो सर वो भी हाँ। ठीक रहेगा क्या? वो भी मतलब किया जा सकता है कि वो उसकी भी देखिए सीक्वेंस होती साइटेशन है? ऐसा है ना, हाँ साइटेशन का कोई सीक्वेंस नहीं होता। साइटेशन अच्छा। जनरली जो है हम अपने कंफर्ट के हिसाब से देते हैं, जो जी टॉपिक सर। जैसे जा रहा है टॉपिक के हिसाब से हम देते जाते हैं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम देते हैं, वो फ्लो खराब नहीं होना चाहिए। और उसके ओके। हिसाब से आप रेफरेंसेस बना लीजिए। तो जी सर। रेफरेंसेस इसलिए जो है वो IEEE फॉर्मेट में क्या होता है, न्यूमेरिक रेफरेंसेस देते हैं, तो उससे क्या जी होता है सर। कि आप कभी भी 1 लिखिए, कभी भी 2 लिखिए, वो चलता है। यस सर। और जो है जनरली हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो रेफरेंसेस का लिस्ट हम बनाते हैं ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टेड रहे, ओके सर। तो उसे ध्यान हाँ जी सर। रखते हैं हम। ठीक सर। सो अभी जो है एक सैंपल एक आर्टिकल है, ये मैंने जो है फ्रॉम जर्नल उठाया है ऑन एडवांसेस इन सिग्नल प्रोसेसिंग। ये एक जर्नल है, ये जो है स्प्रिंजर पब्लिकेशन का है। ठीक, सो ये होपफुली सबको दिख रहा है। तो देखिएगा इसमें जो टाइटल यूज किया, देखिए टाइटल कितना शॉर्ट है, अ सर्वे ऑफ मशीन लर्निंग फॉर बिग डेटा प्रोसेसिंग। सो यहाँ पे पूरा का पूरा जो जो रिव्यू पेपर का जो इंटेंट है वो तुरंत पता लग गया हमको कि मशीन लर्निंग टेक्निक्स यूज करके जो बिग डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है उसका एक रिव्यू है ये पूरा, उसके बारे में सर्वे किया गया है और सर्वे करने वालों का नाम जो है नीचे लिखा है। सो दे हैव सर्वेड इट एंड दे हैव पुट आउट देयर ओन व्यूज रिलेटेड टू द सर्वे। सो इस टाइप का हम लोग को जो है एक शॉर्ट टाइटल यूज करना चाहिए, इसमें ए सर्वे ऑफ करके हम लोग शुरू कर सकते हैं, ए सर्वे ऑन, या फिर लिटरेचर रिव्यू ऑन, लिटरेचर सर्वे ऑन, ऐसा करके लिख सकते हैं। ठीक, और ठीक, तो ये एक जो है टाइटल लिखने का जो है करेक्ट तरीका हुआ। उसके बाद देखिएगा एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन आया है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन देखिए कितना छोटा है, एक पैराग्राफ सिर्फ है। सो एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन को आप जैसे ही पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में देखिए पूरा डिटेल बता दिया। देखिए यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट वी रिव्यू द मशीन लर्निंग टेक्निक्स एंड हाईलाइट सम प्रॉमिसिंग लर्निंग मेथड्स इन रिसेंट स्टडीज। ठीक है, ये बता दिया।
नेक्स्ट वी फोकस ऑन एनालिसिस एंड डिस्कशन अबाउट चैलेंजेस एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस। उसके बाद लिखा है फॉलोइंग दैट वी इन्वेस्टिगेट द क्लोज कनेक्शन ऑफ मशीन लर्निंग विद, ये मतलब पूरे पेपर में क्या क्या किया गया है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बताया। देखिए फाइनली वी आउटलाइन सेवरल ओपन इश्यूज एंड रिसर्च ट्रेंड्स। तो ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट में हम क्या बताते हैं, ओवरऑल लेआउट के बारे में पूरा डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन शॉर्ट में, एक ब्रीफ वे में। ठीक है, जो है सर इसमें हम लोग इसमें जो कीवर्ड्स जी है ये पब्लिकेशन वाला बना के देता है या खुद को बनाना पड़ता है? हमको बनाना पड़ेगा, ये हमको बनाना है। ओके सर। तो ये लोग जब पब्लिश करते होंगे तो उस कीवर्ड को डालते होंगे ना, जैसे कोई हाँ दूसरा बिल्कुल सर्च। बिल्कुल। ये वो जो है ना, देखिए कोई भी पब्लिशर है ना, वो आपको एक डॉक फाइल दे देगा। उस डॉक फाइल में एक फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको अपने टेक्स्ट को इंसर्ट करके पूरे डॉक्यूमेंट को बना के या तो पीडीएफ फाइल बनाने बोलेंगे या तो लैटेक वाला फाइल बनाने बोलेंगे। ठीक है, जी सर। वो जमा करना पड़ेगा। तो वो पूरा फॉर्मेट दिया हो रहेगा, वेबसाइट पे डिपेंड करेगा कौन से, जैसे ये स्प्रिंजर है तो स्प्रिंजर का जो ये है अपना जर्नल ऑफ एडवांसेस इन सिग्नल प्रोसेसिंग, इसका खुद का एक वो रहेगा, एक फॉर्मेट होगा। उस वेबसाइट पे जाएंगे तो फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन फॉर ऑथर्स का एक लिंक रहता है, सो वहां से आप डाउनलोड करके इसको अपलोड कर सकते हैं। अपना अपना कंटेंट इसमें बना दीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। जी सर ये पीडीएफ फॉर्मेट में होता है, दूसरा कौन सा फॉर्मेट था? लेटेक्स, LATEX करके बोलते हैं, लैटेक बोलते हैं उसको। तो लैटेक वाला फॉर्मेट जो होता है वो भी कभी कभी जो है वो जर्नल्स में जरूरत पड़ता है। और वैसे आप लेटेक वाला कोई सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करें तो वो पीडीएफ टू लेटेक कन्वर्टर होता है, वो डॉक टू लेटेक कन्वर्टर भी होता है। तो आप अच्छा अपना, हाँ कन्वर्ट हो जाता है। और आप चाहे तो उसमें टैग्स होता है, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं उसमें लेटेक में। तो टैग्स यूज करके आप अपने कंटेंट को प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं। ऐसा भी कई बार होता है कि आपको लेटेक का फाइल दे दिया जाएगा, उस लेटेक फाइल को आप जो है किसी भी जो लेटेक वो है सॉफ्टवेयर होता है उस पर रन कर सकते हैं। और आपको वो सेक्शंस आपको दिख जाएंगे जहाँ पे आपको अपना डेटा को इंसर्ट करना है, आपके टेक्स्ट को आप कॉपी पेस्ट करते जाएं और आपका पूरा लेटेक का जो है वो बन जाता है डॉक्यूमेंट। तो ऐसा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा? हाँ, उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, वो एक फॉर्मेट दे दिया जाता है। वो आप जैसे लेटेक प्रोसेसिंग का एक सॉफ्टवेयर होगा, बहुत सारे हैं, ओपन सोर्स है, सबके सब फ्री अवेलेबल है, तो उनको यूज करके आप अपना लेटेक का जो है डॉक्यूमेंट बना दीजिए। ठीक है, ओके तो सर। जैसे मेरा सेक्शन कंप्लीट होगा ना, अभी जैसे हम लोग मेरा जैसे हो जाएगा लेक्चर सीरीज जो भी चल रहा है अभी, जब खत्म होगा ना तो उसके बाद फिर एक और प्रोफेसर आएंगे जो आपको लेटेक के बारे में बताएंगे। आप उसमें अपना लेटेक में अपना पूरा थीसिस बना सकते हैं। उसकी एक एक्चुअली उसकी एक प्रोग्रामिंग स्टाइल होती है, उसके कोडिंग स्टाइल होता है उसका, एक प्रोग्रामिंग सर तो नहीं, वो कोडिंग। सर वो लेटेक का प्रोग्रामिंग सिटी 1 के पहले होगा कि बाद में होगा? बाद में होगा, क्योंकि वो सिटी 2 में कवर होगा ना सर? हाँ वो CT2 में आएगा। ओके सर। ठीक, सो ये एब्स्ट्रैक्ट वाला सेक्शन है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो भी पूरे टेक्स्ट में जो भी चीजें हैं उसके बारे में पूरे इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। सो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ही आप पता लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अगर इंटरेस्ट है तो आगे बढ़ते हैं, अगर इंटरेस्ट नहीं है, जिनका इंटरेस्ट नहीं है वो यहीं से बैकफुट पे चले जाएंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट शुड बी इंफॉर्मेटिव, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड कंडेंस। ठीक है, ये एक पैराग्राफ से ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत लिमिटेड होता है, 200 वर्ड्स मैक्सिमम रहते हैं। ठीक है, 200 to 250 वर्ड्स, इससे ज़्यादा नहीं होगा इसके अंदर। और साथ में कीवर्ड्स भी देते हैं हम लोग। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है देना, क्योंकि ये इंडेक्सिंग में यूज़ होता है। आपका पेपर जब पब्लिश होगा, जब वेबसाइट पे दिखेगा, तो कोई अगर कीवर्ड सर्च करेगा तो आपका पेपर मिलना चाहिए। तो ये कीवर्ड सेक्शन जो है उसके लिए काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ गया, देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट आया है। इंट्रोडक्शन जो है वो, इंट्रोडक्शन में देखिए साइटेशंस दिए थे, स्क्वायर ब्रैकेट में 1, स्क्वायर ब्रैकेट में 2 जो लिखा है, देयर आर द न्यूमेरिक साइटेशंस। IEEE फॉर्मेट का साइटेशंस है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक साइटेशंस बोलते हैं वैसे। तो न्यूमेरिक साइटेशंस दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 1 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 है, तो आप इसको अगर देखें, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में जो 1 लिखा है, इसका ऑथर का आपको डिटेल देखना है तो आप रेफरेंस सेक्शन में जैसे जाएंगे, जैसे लास्ट में
ये रेफरेंस सेक्शन में आएंगे, तो रेफरेंसेस सेक्शन में आप ऑब्जर्व करेंगे ये दिया हुआ है, ठीक। तो नंबर 1 में दिया था वो ये ऑथर है, उसका ये डिटेल्स है, ठीक है। सो जितने भी आपके साइटेशंस होंगे, देखिए यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कितने रेफरेंसेस हैं इसमें, अराउंड अभी गिनती कर लेते हैं, 120 रेफरेंसेस दिए हुए हैं इसमें, है ना। सो 120 रेफरेंसेस दिए हैं, इसका मतलब इस अंदर में आपके टेक्स्ट में जो है 120 साइटेशंस होंगे। देखिए 112 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और आगे बढ़ गए अगर देखेंगे तो आपको 120 हाँ 120 इसमें रिसर्च पेपर्स को स्टडी करके इन्हें बनाया। देखिए 1119 119 आ गया, ठीक है। तो आप जैसे इसके पूरे इसमें देखेंगे तो 120 पूरे के पूरे मिल जाएंगे आप, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे सर्च भी करूंगा ना, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में 120 आप सर्च करेंगे तो देखिएगा 1 से लेकर 120 पूरा रेफरेंस आप देखिए यहाँ पे आ गया रेफरेंस, 120 रेफरेंस, ठीक। क्लिक कर दिया मैंने इसको, देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक। सो ये जो है जितने भी साइटेशंस आपने दिए हैं उतना कंप्लीटली वो रेफरेंसेस में भी आने चाहिए। सो टोटल 120 पेपर्स को यूज करके ये इसने अपना रिव्यू पेपर बनाया है, ठीक है। सो ये पूरा इंट्रोडक्शन में जो है एक एक चीज जो है उसने बताया है कि वो जो उसके बैकग्राउंड जो है उसका पूरे रिसर्च में जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में इसमें बताया है, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 2 स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिखा है, वो ऑथर का इंफॉर्मेशन 2 में जाने से दिख जाएगा हमको। सो इन 2011 digital information has grown 9 times in volume in just 5 years and its amount in the world will reach 35 trillion gigabytes by 2020। और जो है ये भी ऑथर 3 ने भी इसको, ऑथर 2 और ऑथर 3 जो है मिलके इस चीज को बोले हैं, मतलब दे हैव प्रपोज दैट, उन लोग ने जो है ये अपना प्रपोजिशन दिया था। तो देखिए ये सब फैक्ट्स जो है वो यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं, ये बेसिस है, मतलब हाँ इसके रिसर्च का बेसिस है ये सब। सो पूरे रिसर्च का बेसिस जो है, पूरे रिसर्च का क्या बेसिस है कि ये बिग डेटा प्रोसेसिंग का रिसर्च है, ये मतलब लिटरेचर रिव्यू है। तो उसका बेसिस बता रहा है कि यहाँ पे जो है डेटा जो है इतना ह्यूज हो जाएगा कि वो बिग डेटा कहलाएगा, ठीक है। 35 ट्रिलियन गीगाबाइट्स इज ए वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। सो ऐसे देखिएगा पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट में यही उसने बताया है कि देखिए यहाँ पे भी देखिएगा कि द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पेपर आर समराइज एज फॉलोज। तो यहाँ पे जो ये 14 नंबर वाला पेपर है उसके बारे में यहाँ पे बता रहा है वो, और इसमें जो है ये उसने खुद का जो है वो एक एनालिसिस करके एक कुछ उसका कंसाइज समरी क्रिएट किया, उसने कुछ पॉइंट वाइज समरी क्रिएट किया, दैट इज वर्थ मेंशनिंग। हाँ सर ये लिटरेचर रिव्यू है ना सर? जी लिटरेचर रिव्यू है। ये कितने पेज की होगी? ये अभी 16 पेज का, टोटल 16 पेजेस का है। हाँ सर, तो जो पेज में आपने कर्सर लिख रखा है ना सर इंट्रोडक्शन में, जो एब्स्ट्रैक्ट, वो पेज नंबर 1 है? जी हाँ, ये जो टाइटल पेज है, पेज नंबर 1। हाँ सर, तो मेरे को सिर्फ यही पूछना था कि वो जो मतलब जो पेज है उसमें डबल कॉलम में अपन कर सकते हैं क्या? जैसे देखिए ये इंट्रोडक्शन और राइट साइड में एक और कॉलम है। हाँ वही मैं ये मैंने आपको MS वर्ड में बताया था ना कि बीच में सेक्शन ब्रेक डाल के आप कर सकते हैं इस चीज को। तो वी कैन पुट टू कॉलम्स एक पेज में चलेगा ना सर इसमें? हाँ मतलब देखिए आप जैसे इसको अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ तक सिंगल कॉलम चल रहा था, देखिए ये जो एब्स्ट्रैक्ट है वो सिंगल कॉलम में है, और एब्स्ट्रैक्ट के बाद इंट्रोडक्शन और बाकी का सेक्शन जो आ रहा है ना वो डबल कॉलम फॉर्मेट में। ओके, ठीक है, तो इसमें आप जो है सेक्शन ब्रेक डाल के आप इसको कर सकते हैं। ओके सर। ठीक, और ये जो है आपको गाइडलाइंस मिलेगा कि ऐसा बनाना है कि नहीं बनाना, ये गाइडलाइंस आपको उस वेबसाइट के इंफॉर्मेशन फॉर ऑथर्स में मिलेगा। सर वो फॉर्मेट देंगे उसमें पता रहेगा? हाँ उसमें पता लग जाएगा जो सिंगल कॉलम है कि डबल कॉलम है, कहाँ पे सिंगल कॉलम यूज करना है, कहाँ पे डबल कॉलम यूज करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ये ऑथर जो अभी लिस्ट में जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ना, यहाँ पे जो है उसके साथ साथ उसके एफिलिएशंस भी देने पड़ते हैं कि वो ऑथर कहाँ कौन है और कहाँ को बिलोंग करते हैं, वो भी यहाँ पे देना पड़ता है, कभी एड्रेस के साथ, ऐसा भी होता है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा जर्नल पे अपना कंटेंट देना चाह रहे हैं। उस जर्नल का खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, फॉर्मेटिंग होता है, उस फॉर्मेटिंग को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जो जर्नल है उसका
जो है वो ये है कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो सिंगल कॉलम फॉर्मेट में होगा और बाकी का सेक्शंस जो आएंगे वो डबल कॉलम फॉर्मेट में रहेंगे इस पर्टिकुलर जर्नल के हिसाब से। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देखिएगा 1.2 लिखा है, फिर 1.2.1, ये भी मैंने आपको बताया था कैसे नंबरिंग आप करते हैं MS वर्ड में। ठीक है, हाँ सर, ये भी क्लियर है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ये बहुत मतलब जो है प्रैक्टिकली आप इसको करके देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन लर्निंग, अब इस पे जो है उसने रिव्यू करके बताया है कि डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन लर्निंग में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, रोड मैप फॉर दिस सर्वे, देखिए इसको पूरा डायग्रामेटिकली इसने बता दिया कि फिगर वाइज बताया कि रोड मैप फॉर द एंटायर सर्वे क्या है, सेक्शन 1.1 1.2 में क्या मिलेगा, सेक्शन 1.3 में क्या मिलेगा, 1.4 में क्या मिलेगा, 1.5 और सेक्शन 2 में क्या मिलने वाला है। मतलब एक बहुत ब्यूटीफुली जो है फ्लो चार्ट बना के उसने बता दिया कि जो है इसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, और इसको भी सर जो है वो हम भी ऐसे ही कलर्ड चार्ट बना के कुछ चीज डाल सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो कहे कि ये फॉर्मेट में नहीं है तो आप ऐसा कुछ डायग्राम नहीं डाल सकते हैं। नहीं, डायग्राम और टेबल्स तो 100% डाल सकते हैं, वो तो बिल्कुल होता ही है, फिगर्स एंड टेबल्स तो 100% डाला जा सकता ओके। है ना, कोई भी पेपर में, चाहे वो रिव्यू पेपर हो या टेक्निकल पेपर हो या एक्सपेरिमेंटल पेपर हो, वो सभी में डायग्राम्स और टेबल्स एंड चार्ट्स ये सब आना ही है। सर जैसे आपने बताया था वर्ल्ड में जाके डायग्राम या चार्ट वैसे ही चीज को यूज करके ये डाला गया है। हाँ, उसमें आप यूज करें तो अच्छा होगा, क्योंकि आप जैसे उसका वो बनाएंगे ना, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा। ओके सर। ठीक है, क्योंकि ये आप अपने थीसिस में भी यूज करेंगे ना, क्योंकि यही चीज तो आप थीसिस में भी डालेंगे, तो आपका थीसिस यस भी बनने लगेगा ना साथ साथ। ठीक, सो ये जो है जैसे रोड मैप फॉर दिस सर्वे जो है यहाँ पे लिखा है, तो ये बहुत बढ़िया तरीका है जिससे कि एक फ्लो के थ्रू जो है हम बता रहे हैं कि शुरू में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। ठीक, उसके बाद फिर आप देखेंगे कंपैरिजन ऑफ मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज, तो हम लोग जनरली रिव्यू पेपर में कंपैरिजन जरूर डालते हैं, तो ये एक तरीका है कंपैरिजन डालने का। तो एक टेबुलेटेड फॉर्मेट में देखिए, ये टेबल है एक्चुअली। ठीक है, याद रखना है, फिगर का जो उसका लेबल होता है, उसका टाइटल होता है, फिगर के नीचे आता है, और जो टेबल होता है, टेबल का जो टाइटल होता है वो टेबल के ऊपर आता है। एक मिनट, ये बंद हो गया लगता है, एक सेकंड ना। कहाँ गया? हाँ, ये ठीक है। सर अरे, सर एक एक जैसे ये रिसर्च पेपर और थीसिस और लिटरेचर रिव्यू, जी जी ये तीनों चीज के लिए आप मतलब एक सजेस्ट कर सकते हैं कि हम लोग जैसे आप जो दिखा रहे हैं अभी ये जो रिसर्च पेपर लिटरेचर रिव्यू का, तो ये हम लोग उसी को मॉडल बना के हम अपना आगे बढ़े, तो मतलब हाँ उसी को फॉलो करते हुए जो मतलब मतलब आप तो एक्सपीरियंस है सर, आपको तो बेस्ट पता है कि कौन सा लिटरेचर बेस्ट है मतलब। हाँ, मैं देखिए एक्चुअली क्या है कि आप सभी अलग अलग उसमें से हैं, स्ट्रीम्स में से हैं, सो मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मेट बता सकता हूँ कि जिस फॉर्मेट में आप काम कर सकते हैं, लेकिन बाकी का जो जो एरिया ऑफ रिसर्च होगा वो तो सब्जेक्ट आप ही को फाइंड आउट करना नहीं पड़ेगा। नहीं, एरिया ऑफ रिसर्च हम वो नहीं है सर, मतलब एक खाका जो बोलते हैं ना सर, हाँ 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 जो एक हाँ मतलब एक फॉर्मेट जैसे बन जाएगा, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, जैसे जस्ट जो जैसे आप बोले ये बेस्ट है, तो हम अपने यस यस। रिसर्च पेपर को जब करेंगे तो वी विल फॉलो दिस, कि ये सब चीजें मैंने इसके हिसाब से किया है कि नहीं, दैट विल बी चेकलिस्ट फॉर अस। हाँ, देखिए जैसे अभी मैं आपको ये जो रिसर्च पेपर दिखा रहा हूँ ना, आर्टिकल, ये काफी स्टैंडर्ड वे है टू प्रेजेंट रिव्यू। ठीक है, तो आप ये फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं अभी जो मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सो दिस विल हेल्प यू। सर गुड इवनिंग सर। सर एक डाउट था मेरे को, ये पूछना था कि सर अभी जो टेक्यूब का प्रोजेक्ट सर CSVTU से मिला है, उसमें एक पेपर
मुझे डालना है, मतलब जो हार्डवेयर मैंने प्रिपेयर किया है उसके रिगार्डिंग एक पेपर डालना है सर। जी जी। और द थिंग इज दैट सर, डज वर्ड काउंट मैटर्स व्हेन यू आर गोइंग फॉर सिलेक्टिंग फॉर अ जर्नल? मींस द टोटल वर्ड काउंट ऑफ नहीं द नहीं। रिसर्च पेपर, हाँ, इट शुड वर्ड बी काउंट अराउंड का 4। कोई वर्ड काउंट का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, एक चीज होता है कि कुछ कुछ जो आर्ट वो रहते हैं, जर्नल्स होते हैं, वो पहले से स्पेसिफाई कर देते हैं कि 3 पेज से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 3 या 4 पेज मैक्सिमम। और सर ये ऐसा। लोग हाँ, जैसे कि साइट स्कोर और सर इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में भी बात करते हैं दोनों। जी हाँ जी तो हाँ। तो ये दोनों में सर, फॉर विच थिंग वी शुड गो फॉर, लाइक वी शुड गो फॉर साइट स्कोर और इम्पैक्ट फैक्टर सर? देखिए, इम्पैक्ट फैक्टर जिसका सबसे ज्यादा है वो ज्यादा वो तो पॉपुलर, स्टैंडर्ड है। हाँ ज्यादा पॉपुलर है एक्चुअली। और हाँ रिसर्च कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर है, तभी उसका इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होता है। मतलब उसमें जो रिसर्च आर्टिकल्स जो होते हैं वो अच्छे क्वालिटी के होंगे, तभी रिसर्चर्स उसको पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही रिसर्चर्स पढ़ना शुरू करेंगे, जितने बार वो साइट होगा उतना उसका इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ते जाता है। जी सर। तो जर्नल्स दैट हैव हाई इम्पैक्ट फैक्टर जनरली आर ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। सर एक्चुअली सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर दो फैक्टर मैं देख रहा था, दिखा रहा था जो भी स्टैंडर्ड जर्नल्स है। फॉर एग्जांपल जैसे यस्टरडे में आई वाज सीइंग अबाउट IEEE इंटरनेट ऑफ थिंग्स जर्नल, उसका इम्पैक्ट फैक्टर अराउंड 9.6 था और साइट स्कोर भी था सर। तो ये दोनों सर, ये दोनों चीज, साइट स्कोर का जो कैलकुलेशन मेथड और ये इम्पैक्ट फैक्टर, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था सर एक्चुअली। देखिए, साइटेशन का जो स्कोर है वो मतलब जैसे मैंने अपना पेपर बनाया, उसमें आपके पेपर का मैंने साइटेशन कर दिया, जी तो सर। आपका साइटेशन, आपके पेपर का साइटेशन स्कोर बढ़ते जाएगा। जी सर। ठीक। तो आपका पेपर का जो साइटेशन स्कोर है वो बढ़ा, और जिस जर्नल में आपने पेपर को पब्लिश किया हुआ था, जहां से मैंने उठाया है, नेचुरली उस जर्नल का भी साइटेशन स्कोर बढ़ेगा, अच्छा मीन्स, क्योंकि वो पेपर उस जर्नल में पब्लिश है। अच्छा टू टू वे टाइप का है सर, मतलब हाँ। तो द मोर यू हम लोग सीक क्या द मोर करते हैं इट एज स्कोर्स। ऑथर, एज ऑथर्स, हमारे लिए सबसे अच्छा होता है कि हमारा आर्टिकल ज्यादा से ज्यादा साइट हो। यस सर। तो हमारे लिए साइटेशन फैक्ट वैल्यू हमारे जर्नल का, हमारे पेपर का जो पब्लिश कर दिया हम लोग ने, जी सर। उसका बढ़ना एक बहुत अच्छी बात है। और कौन से जर्नल में हम पब्लिश करें, ठीक है, हमने बनाया नहीं अभी पेपर, हमको पब्लिश करना है, तो हम जिस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा है उस जर्नल में हम अपने पेपर को पब्लिश करें। जी सर। ठीक है। तो इम्पैक्ट फैक्टर देखते कब है, जब हमको पब्लिश करना है। और साइटेशन स्कोर देखना कब है, जब हमने पब्लिश कर दिया है और हमारा साइटेशन बढ़ना चाहिए, तो हमारा साइटेशन स्कोर बढ़ना चाहिए। ओके सर। ओके। है ना। तो ये ओके एक तरीके के टू वे कह सकते हैं कि हम दूसरे का जो है जो पढ़ रहे हैं आर्टिकल, तो उसका साइटेशन वैल्यू बढ़ रहा है, और लोग हमारा आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो हमारा साइटेशन वैल्यू बढ़ रहा यस सर। यस सर। ओके सर, है। थैंक यू। वेलकम। सो जो है, जैसे कंपैरिजन ऑफ मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज जो यहाँ पे लिखा है, ये टैबलेटेड फॉर्मेट में देना, ये अच्छी बात है। इस टाइप से देने से बहुत इफेक्टिव होता है, जिससे हम बता सकते हैं जो पढ़ रहे हैं उन लोग को कि हमने जो है कंपैरिजन कैसे किया है। तो यहाँ पे जैसे लर्निंग टाइप्स, डेटा प्रोसेसिंग टास्क, डिस्टिंक्शन नॉर्म, लर्निंग एल्गोरिदम्स, उसके बेसिस पे जो है कंपैरिजन है। ठीक, उसके डिस्कशन नीचे है। अब इसमें जैसे अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, एक ये एडवांस लर्निंग मेथड्स करके एक सेक्शन इसने बनाया है। और इसमें देखिएगा, इन दिस सबसेक्शन वी इंट्रोड्यूस अ फ्यू रिसेंट लर्निंग मेथड्स दैट मे बी आइदर प्रॉमिसिंग और मच नीडेड फॉर सॉल्विंग बिग डेटा प्रॉब्लम्स। ये देखिए, इसमें जो है वो हम सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये हमने ऑब्जर्व किया है कि कौन से जो है मशीन लर्निंग मेथड्स यूज करके बिग डेटा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने अगर करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और वो रीसेंट है, मतलब अभी रिसेंटली जो है इनको किया गया है। जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लर्निंग, डीप लर्निंग, ठीक है, और जो है और भी टेक्निक्स बताया, जैसे ट्रांसफर लर्निंग है, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल लर्निंग। सो ये हमने फिर एनालाइज करके बताया, ये हमारा एनालिसिस है। लेकिन वी आर गेटिंग दिस फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स। जैसे ये 43 नंबर वाला आर्टिकल है, ये 44 नंबर वाला आर्टिकल है,
इसमें से हमने इस चीज को उठा के यहाँ पे लिखा है। सो हमने रीड सबको किया है, लेकिन ऑर्गेनाइज हमने अपने हिसाब से किया है, जो जो हमको लगा कि ये सही तरीका है उसको ऑर्गेनाइज करने का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए द क्रिटिकल इश्यू ऑफ मशीन लर्निंग फॉर बिग डेटा, इसको भी डिस्कस किया है यहाँ पे। क्रिटिकल इश्यूज क्या क्या हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है डिस्कशन करने का कि क्रिटिकल इश्यूज क्या है। सो ये हमको बताता है कि जो क्रिटिकल इश्यूज चल रहे हैं इसके बेसिस पे लोग अपना रिसर्च गैप्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है अब लास्ट में डिस्कशन सेक्शन है। देखिए यहाँ पे डिस्कशन सेक्शन है। डिस्कशन सेक्शन में जो है ये हम अपना ऑब्जर्वेशन डालते हैं कि हमने ये सब चीज़ें देखने के बाद हमने जो है क्या समराइज किया, इसको किस तरीके से हम इसको समराइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इसमें 5 एस्पेक्ट्स हैं, वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। ये हमने फाइंड आउट किया कि ये जो है 5 एस्पेक्ट्स हैं बिग डेटा के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। और उसके ऊपर बाकी का डिस्कशन हम लोग ने यहाँ पे किया है। और यहाँ पे मॉडल के एक हायरार्किकल फ्रेमवर्क ऑफ एफिशिएंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम फॉर बिग डेटा प्रोसेसिंग, ये हमने एक प्रपोज किया। ठीक है, हमारे नॉलेज के हिसाब से हमने इसको एक प्रपोजिशन दिया कि ऐसा एक किया जा सकता है। अब ये प्रैक्टिकली बना नहीं है, ये एक प्रपोजल है कि ऐसा एक मॉडल तैयार किया जा सकता है दैट कैन बी यूज्ड फॉर बिग डेटा प्रोसेसिंग। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, हमने इसको प्रपोज किया। सो दिस इज समथिंग न्यू, है ना, ये नोवेल चीज अपन ने यहाँ पे प्रपोज कर दिया, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं डायग्राम में दिखा रहा है। ठीक है, सो ये चीज हो गया आपका जो है जो आपको खुद का जिसको कंट्रीब्यूशन ये आ जाएगा। और लास्ट में आई थिंक इट विल बी द कंक्लूजन पार्ट, जिसमें रहेगा ये कंक्लूजन्स हैं। तो मोर देन वन कंक्लूजन है, इसलिए कंक्लूजन्स हैं। अगेन ये भी जो है आपका खुद का क्रिएटेड होगा फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो आपने कुछ अगर रिसर्च क्वेश्चंस डाले हैं उनका यहाँ पे सॉल्यूशंस भी रहेगा, और आपका खुद का कंक्लूजन रहेगा। देखिए कंक्लूजन जो है एक पैराग्राफ है बस। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, एक पैराग्राफ होगा। उसके बाद फिर एक्नॉलेजमेंट्स वाला सेक्शन है, एक्नॉलेजमेंट वाला सेक्शन आ गया। उसके बाद फिर रेफरेंसेस वाला शुरू हो गया, इसमें 150 जो पेपर्स हैं, अराउंड 120 है, 129 पेपर्स हैं इनका पूरा। सर जो हमने लिटरेचर रिव्यू में जो लिखा था हाँ, कि पेपर 1 पेपर 2 के अकॉर्डिंग, वही सारे पेपर है ना? ये पूरे वही है, जितना साइटेशन आपने टेक्स्ट में दिया था ना एग्जैक्टली वो सब रेफरेंसेस हैं यहाँ पे। और सर ये नंबर वाइज होना चाहिए। हाँ, ये इसको आप नंबर वाइज, हाँ अल्फाबेटिकली कर दें, सबसे बेस्ट होता है अल्फाबेटिकली कर दीजिए, फिर उसको नंबरिंग कर दीजिए। बट ये सर हम अल्फाबेटिकली, अगर लेकिन सर अगर हम रिसर्च पेपर जैसे 2006 का 2007 का, उस केस में क्या करेंगे? वो डजेंट मैटर। आप जो आपका रेफरेंसेस वाला जो आप बनाएंगे ना, उसको आप हाँ, पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में उसको सेट कर दीजिए। उसके बाद ओके। फिर उसको जो है न्यूमेरिक नंबरिंग दे दीजिए। वर्ड में, एमएस वर्ड में तो नंबरिंग दे सकते हैं, वो बुलेट्स एंड नंबरिंग जाके हाँ हाँ, पूरे को नंबरिंग आ जाएगा। अब इस ओके नंबरिंग को आप अपने फिर इन टेक्स्ट साइटेशन में यूज करिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लगा के, ओके ओके सर, है ना, तो ज्यादा समझ बेटर रहेगा। ठीक, अभी फिलहाल आप इसको जब ऑब्जर्व करें ना, ये न्यूमेरिक ये जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। देखिए ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, रहे तो अच्छा है, क्योंकि क्या होगा कि आपका थीसिस जो आप बनाओगे ना, थीसिस में आपको उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही रखना पड़ेगा, वो एक अपना कंपल्शन है CSV2 का। सर तो थीसिस में हम जो ये रिसर्च पेपर होते हैं इनको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर एक के बाद एक उठा सकते हैं, थीसिस के रेफरेंसेस में रख सकते हैं। हाँ, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप पहले से अरेंज करके रख लीजिए ना, तो आपको आसान पड़ेगा उसको अपने थीसिस में डालने में। कॉपी पेस्ट कर लेंगे सर? हाँ, कॉपी पेस्ट कर लेना, है ना। तो ये आपका खुद का रिसर्च मतलब रिव्यू है, इसको आपने SCI में पब्लिश कर दिया है, तो आपके नाम का जो है इसमें ठप्पा लग गया है, कॉपीराइट हो गया आपका। अब इसको अपने थीसिस में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर इंजीनियरिंग में 4 साल कंप्लीट करने के बाद एक थीसिस बनाना होता है, मतलब पूरा प्रोजेक्ट का कंक्लूजन। तो उसी तरह से होगा ना ये भी, जैसे मैंने CSV2 से BE किया हुआ है, उसके बाद MBA किया है। तो हम लोग जब 4 साल कंप्लीट होने के बाद हमने लगभग 200 पेज का बनाया है बुक, जैसे वो प्रोजेक्ट बनाया था। हाँ, प्रोजेक्ट का। तो उसी टाइप से ये भी होगा ना हमारा जो ये होगा। हाँ, इसका फॉर्मेट अलग है, इसका फॉर्मेट अलग है। ओके, मैं इसका फॉर्मेट भी शेयर करूंगा नेक्स्ट क्लास में,
जो जी CSV2 का फॉर्मेट है ना, उसको भी हम एक थोड़ा देख लेंगे। जी ठीक है। सो Yes. वो फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है। उसका जो है सैंपल भी मैं आपको एक का दिखा दूंगा इसमें, तो एक आइडिया लग जाएगा। जी ओके सर। सो अभी जो अभी तक जो आपने डिस्कशन किया, इसमें किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है क्या? और कोई सर डाउट्स एक हैं? चीज सर एक क्या चीज पूछनी है। बोलिए। सर जैसे हम लोग की प्रैक्टिकल क्लास तो हो नहीं पा रही है सीए की, तो हम लोग घर में ही जैसे तैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो अगर कभी बाई चांस की कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, हाँ तो लेक्चर के बाद आपसे पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, आप व्हाट्सएप करिए ना, मुझे व्हाट्सएप करिए। ओके ओके। हाँ, व्हाट्सएप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरा अगर लेक्चर सीरीज खत्म भी हो जाता है ना, देन ऑल्सो आपको जब भी कुछ भी डाउट लगता है ना, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके सर ओके। आपका नेम वगैरह मेंशन कर दीजिए। जो क्या है ना कि मैंने सबका नेम से तो सेव नहीं किया है मेरे व्हाट्सएप में। सो आपका ओके जो है ना, आप अपना जब आप वैसे आप डिस्कशन करेंगे तो आपका नेम आप लिख के कि मैं ये माय नेम इज दिस, सो आई कैन देन रिकॉग्नाइज, ओके सर ओके। है ना। सो ये अभी अभी जैसे हमारा जो अभी जो अपना अभी जो लेक्चर चल रहा है, अभी अपना एक जो रिलेशन बन गया है ना, ये हमेशा के लिए बन गया। अब आप फ्यूचर में भी जैसे आप रिसर्च भी कर रहे होंगे, और आगे जाके भी आपको अगर आपको कुछ लगता है क्वेश्चन पूछना है, तो आप मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो है ये नेवर एंडिंग रिलेशन बन गया हमारा, है ना। सो काइंड ऑफ यू सर। अरे सर, Sure, sir. So kind of you, sir. नो प्रॉब्लम सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अभी जो है हम लोग अभी मैं अटेंडेंस शुरू करूंगा। सो